So please do not spam. Okay, if you spam and like after this warning, you guys spam again. So what I would do is I would have to kick the person out because the thing is, okay, that basically messes up the experience for everybody. I will be answering all of the questions one by one. So don't spam. मैं सबके questions को answer करूँगा, right? So ये हो गई चीज. द सेकंड थिंग इज कि आज जो है आई एक्चुअली वेंट टू एन एआई सीखो इवेंट एंड इट वाज बेसिकली बाय Zebist and they hosted me, so you guys can see okay, it was an amazing energy. I got to answer all of their questions, gave them a Build with AI workshop, which was my favorite, like my favorite part, and this was my first workshop, so just sharing that with you guys, right? सो आज का एजेंडा यही है कि हम लोग एआई सीखो हैकाथॉन के ऊपर बात करेंगे, फिर वजाहत भाई हमें एक सेशन देंगे, Q&A करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन डेमो करेंगे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, राइट? सो मैं हूँ आप लोगों का होस्ट उमर नज़ीर, एंड alongside me we have two great moderators who have been with us. So one is Tathir Zara and one is Fatma. So Tathir, why don't you unmute your mic and just tell us about yourself and we'll take it from there. Assalamu alaikum everyone. Hope you're doing great. So let me introduce myself. My name is Tathir Zara, and my great passion came into creative designer because I love creating things in different kind of category, whether it's a digital creative designing or whether it's a resin artist or whether especially I love baking and put my all creative into baking. So on my free time, I usually watch animation movies or something else to like free time. मतलब कि होता है ना कि आपका जो 9 to 5 की job होती है, आप बिल्कुल एक jam हो जाते हो, आपका कोई काम भी नहीं होता. तो that's why I always like to make myself fresh. I watch animes, and also I work as creative head, community and creative designer head at AQ6 cybersecurity firm. So this is me. Okay, thank you so much. And Fatma? Hello, everybody. I'm Fatma. I've been here for the first phase as well. Maybe some of you have seen me before. I'm a GIS developer by profession. GIS stands for Geographical Information System. So I basically make Android and web application which use maps, which includes map in that. Yeah, that's about it, I think. So guys, एक बस मैं mention करूँगा कि please chat को spam ना करें, because the thing is कि I have just kicked out a spammer. Please don't spam the call. This actually मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के questions को answer करूँ, but if you guys आप लोग like हमारी audience के लिए experience खराब होगा तो that is something going to be like I would have no other choice but to do that. ठीक है? So okay, taken हम लोग उर्दू में ही बात करेंगे moving forward. So जिन लोगों ने हैकाथॉन के लिए रजिस्टर नहीं किया वो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं. Fatma, can you send the link in the chat as well? So ये QR कोड है, if you guys can scan it. And you guys know कि ये जो हैकाथॉन है वो हम लोग हैकाथॉन फेज के अंदर आ चुके हुए हैं और यहाँ पे प्राइज मनी इज 2.5 मिलियन. तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप एक ही बंदे को 2.5 मिलियन मिलेगा, बट इट इज अ प्राइस पूल. सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू बी सुपर क्लियर ऑफ. बाकी चीजें जो है वो मैं आगे डिसाइड करूंगा, लेकिन जो टॉप प्राइस है दैट इज आल्सो प्रीटी बिग, सो यू नो आल्सो नीड टू कीप दैट इन माइंड. सो एक पूरी रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन वो ये है कि 4th मई से 11th मई इज गोइंग टू बी रजिस्ट्रेशन फेज. इसके अंदर आपको कुछ भी बिल्ड करने की जरूरत नहीं है. जस्ट बिल्ड अ टीम एंड रजिस्टर यूजिंग द InnoCollab प्लेटफॉर्म. सो दैट्स सुपर क्लियर ऑन दैट. 12 से 28 तक देयर विल बी शॉर्टलिस्टिंग, सबमिशन एंड जजिंग, राइट? सो इस पूरे टाइम पीरियड में शॉर्टलिस्टिंग भी हो रही होगी, सबमिशंस भी हो रही होंगी, जजिंग भी हो रही होगी, और रीजनल राउंड्स के जो विनर्स हैं दे विल प्रोग्रेस टू the final hackathon which will be physical. So जो regional rounds हैं ये online होंगे, लेकिन जब आप लोग register कर रहे हैं तो even for example if you're from Multan, so choose Lahore which is near to your city, right? So मैं आप लोगों को एक registration demo भी दूंगा after this session, but this is super clear कि ये करना है आपने. Physical hackathon होगा इस्लामाबाद में. Teams will be given travel
एंड उसमें उसके बाद ये होगा कि 8 जून को मोस्ट प्रॉब्ली वी विल बी, दिस इज अ टेंटेटिव डेट, बट इस दिन जो है हम लोग इसको क्लोज कर रहे होंगे, दिस विल बी अ ग्रैंड क्लोजिंग, ठीक है। सो दैट्स क्लियर। जो आपका ऑनलाइन लर्निंग ट्रैक है उसमें जो आपको पता है कि सिल्वर टीयर और गोल्ड टीयर है, वी आर करंटली इन द फेज ऑफ डिसाइडिंग के जो विनर्स हैं वो कौन है। और हैकाथॉन के अंदर जो आपके रीजनल शॉर्टलिस्टेड पीपल होंगे जो स्पेशल मेंशंस में आएंगे उनको स्वैग मिलेगा, और जो हैकाथॉन विनर्स होंगे उनको भी स्वैग मिलेगा, प्लस दे विल गेट अ शॉट एट the prize money, right? So these are some of the things that I wanted to clear. Now I wanted to introduce our very special guest, and then I will stop sharing the screen and I will hand it over to क्या कहते हैं वजाहत भाई, के वजाहत भाई आए वो हमें बताएं as to what does he think of the vibe. So I'm stop sharing the screen, but आप जो हैं वो एक round of emojis दें for वजाहत भाई ताकि we welcome him with like some warm energy. So over to you वजाहत भाई. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस, कैसे हो यार। 186 पीपल वेडनेसडे वाले दिन रात को खाना वाना छोड़ के आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। हमेशा इस तरह के इवेंट जब भी देखता हूँ आई ऑलवेज फील के यार प्रोबेबली वी आर वेरी वेरी एनर्जेटिक पीपल ऑनेस्टली। शायद इसी वजह से जो है इतने सालों से मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, और तो बहुत खुशी होती है। मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज, और किसने मेरा कोई सेशन पहले अटेंड किया या नहीं किया, लेकिन मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, मेरे पास 2 स्क्रीन हैं, तो आई रियली लाइक कि हम लोग को इंगेजिंग करें, क्योंकि मेरा हमेशा से सेशन इंगेजिंग ही होते हैं नॉर्मली। सो यस, आई थिंक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि पिछले 2 साल में एक जो दुनिया है वो इंटायरली डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई है। और मतलब कितनी मज़े की बात है कि मेरी एक स्कॉलरशिप है और उसमें मैं स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। तो हर साल जो यूनिवर्सिटी का जो मेरिट होता है वो मुझे पता होता है कि किसने मेरिट पे कौन सी यूनिवर्सिटी में स्पेशली नस्ट और फास्ट में स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो पिछले 3 साल से ना मैं नोट कर रहा हूँ कि नस्ट का जो सीएस का मेरिट है ना वो हर बार कोई 91, 92, 93, एक बार तो 94 पे था। मतलब बड़ी अजीब किस्म की बात है कि जो स्टूडेंट 100 में से 94 मार्क्स लेता है उसको लास्ट सीट मिलती है सीएस की, 93 वाले को सीएस भी नहीं मिलता। मतलब अगर मैं रिवाइंड करूँ इसको कोई 7-8 साल पहले, तो जब मैं सीएस का करियर बना रहा था सारा कुछ, तो उस टाइम पे इंटायरली डिफरेंट सोच थी। उस टाइम पे लोग जो है वो इन चीज़ों को प्रेफर करते थे कि मैकेनिकल हो, सिविल हो, सीएस का जो है वो कोई खास फायदा नहीं है, सीएस ये सीएस वो। और फिर एक ऐसा फेज आ रहा है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 94 के बाद जो है तो आपको सीएस की सीट नहीं मिल रही। मतलब एक टोटली माइंडसेट शिफ्ट हो गया पाकिस्तान में लोगों का, पेरेंट्स का, बच्चों का, स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद अब एक टोटली डिफरेंट किस्म का जो है वो आ रहा है कि मतलब मुझे लगता है कि अगले साल जो है ना सीएस का मेरिट जो है वो टोटली डिफरेंट होगा। प्रॉबेबली अब नस्ट वाले जो है ना सीएस में लोगों को मिन्नतें करेंगे कि आप आके सीट ले लो। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का होगा, लेकिन समहाउ नजर आ रहा है। मेरे पास कल भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था एक बच्चे का कि उसने बोला कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ। और लास्ट वीक जो है मेरी एक पेड कॉल थी 1-on-1 पे, और वो एक 16 साल के बच्चे ने एक कॉल बुक की थी, और वो उसका सवाल यही था कि मैं पिछले 2 साल से जो है वो कोडिंग सीख रहा था, लेकिन अब नजर आ रहा है कि कोडिंग की जरूरत नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। तो वो 16 साल का था, मतलब अभी मैट्रिक वगैरह में क्लियर किया है उसने, और मुझे बोल रहा है कि मैं सीएस में जाना चाह रहा था, एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा था, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो आज मैं थोड़ा सा इस सवाल के बारे में भी बताऊंगा, और बाकी जो आपके सवाल हैं वो आप प्लीज
इसमें कमेंट्स में करें। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे सवालों के जवाब दूं। तो पहले सवाल पे आ जाते हैं कि क्या सीएस अभी भी इतनी इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो है कि यस, सीएस इज स्टिल इम्पोर्टेंट। और अगर आपको कोडिंग आती है तो इट्स वेरी गुड, और अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो स्टिल इट्स वेरी गुड। बिकॉज वाइब कोडिंग आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोडिंग सीखना बंद कर दो। ठीक है। जब नया नया चैट जीपीटी आया था ना, तो उस टाइम पे कंटेंट राइटर के ऊपर पहला पहला अटैक आया था, और उस टाइम पे सब लोगों ने दबा के आर्टिकल जनरेट करवाना, कमेंट जनरेट करवाना, मैसेज जनरेट करवाना, ईमेल जनरेट करवाना करवा दिया। चैट जीपीटी ने हर तरह का कंटेंट उठा के उसके ऊपर अपना मॉडल ट्रेन कर दिया, और जब वो ट्रेन मॉडल उन्होंने आम इंसानों को दे दिया, तो उसके बाद हमने उससे एआई स्लॉग जनरेट करवाना शुरू कर दिया। यूजलेस आर्टिकल और क्वांटिटी में जो है टेक्स्ट आ रहा है। अब डेटा इस लेवल पे आ गया है कि अब ट्रेन मॉडल्स को, एआई मॉडल्स को डेटा मिल ही नहीं रहा मजीद ट्रेनिंग के। और वो जो डेटा मिल रहा है ना, तो वही एआई स्लॉग उनको रिपीटेबली वापस मिल रहा है जो उन्होंने ही जनरेट किया था। ठीक है। और अब ये सर्कल कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हम बोलते हैं कि एआई की क्वालिटी खराब हो रही है। बेसिकली एआई की क्वालिटी खराब नहीं हो रही, एआई का मॉडल अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन जो उनको डेटा मिल रहा है ना, वो अब करप्ट हो रहा है। और इसका खैर आपको अंदाजा लगा लेंगे कि इससे के चैट जीपीटी गैसलाइटिंग करना शुरू कर रहा है, चैट जीपीटी झूठ बोलना शुरू कर रहा है। और क्लास जो है वो हमारे साथ, कल मैंने स्टेटस लगाया था कि क्लास ने मुझे भाई बोला था, भाई। टर्मिनल में लिखा है भाई यू आर गोइंग वे अहेड। आई वाज लाइक सीरियसली यार, भाई बना दिया इसने मुझे। तो वो था ना, पीके मूवी में था ना कि झूठ बोलना सीख गया हमसे, इंसानों से। अब हम जो है ना सारी अपनी दो नंबरी वाली हरकतें एआई को सिखा रहे हैं, और नजर आ रहा है रिजल्ट। ठीक है। तो इसमें कोडिंग कहाँ लाई करती है? उसी एआई स्लॉट में लाई करती है। तो वो कहते हैं ना कि एआई अब पागल होती जा रही है, एआई प्रोडक्शन डेटा बेस उड़ा रही है, सारा कुछ। बेसिकली अब एआई के पास कोड में भी कोई खास जो है ना वो डेटा मिल नहीं रहा है ट्रेनिंग के लिए। और हम वही जनरेटेड एआई मॉडल का डेटा, जनरेटेड एआई कोडिंग जो है ना उसको पकड़ा रहे हैं कि आप बस और ट्रेन हो जाओ, और ट्रेन हो जाओ, और ट्रेन हो जाओ। क्योंकि एट सम पॉइंट एआई कोडिंग की क्वालिटी पॉसिबली खराब होगी, और उसके बाद फिर हम अगेन वापस ह्यूमन के ऊपर वापस आएंगे। मतलब अभी हम एआई को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, और एक दो साल के बाद, मेरे ख्याल से 2 साल के बाद, 2 साल के बाद हमें जो है ना वो एक डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा, जहाँ पे कंपनी जो है वो अपनी वेबसाइटों पे लगाएंगे कि ह्यूमन रिटन कोड, वी प्रोवाइड ह्यूमन रिटन कोड, वी प्रोवाइड ह्यूमन टच प्रोटेक्शन एप्लीकेशंस। तो हम वापस आएंगे। ठीक है। क्या कोडिंग खत्म हो जाएगी या क्या कोडिंग चेंज कर देगी? आई वुड से नो, नहीं होगी खत्म। क्यों नहीं होगी? कोडिंग की नेचर चेंज हो जाएगी। सही है। अगर हम जाते हैं बिफोर टेक्नोलॉजी, प्री टेक्नोलॉजी, तो उस टाइम पे भी पोस्टर्स बनते थे, वो हाथ से बनाए जाते थे, पेंटिंग की जाती थी पेंसिल से, और वो फिर प्रोटेस्ट में और एडवर्टाइजिंग में यूज होते थे। फिर न्यूज़पेपर का है, प्रिंटर का है, फिर हमने न्यूज़पेपर के ब्लैक एंड व्हाइट पेन फ्लेक्सेस बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा एडवांस आया तो टाइपिंग मशीन आ गई, फिर हमने हाथ से लिखने के बजाय टाइपिंग मशीन से लिखना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा और एडवांस हुआ तो फिर हमने कंप्यूटर पे लिखना शुरू कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, और फोटोशॉप में जो है सारे पोस्टर्स बन गए थे। फिर थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ तो कैनवा में पोस्टर बनना शुरू हो गए। फिर थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, फिग्मा में पोस्टर बनना शुरू हो गए। अब हम एक ऐसा टाइम देख रहे हैं जहाँ पे प्रॉम्प्टिंग से पोस्टर बन गए। लेकिन बिफोर टेक्नोलॉजी, ये पिछले 50-60 साल में अभी भी वही पोस्टर प्रिंट हो रहा है, सिर्फ नेचर ऑफ द वर्क चेंज। कोडिंग भी ऐसे ही है। हम लोगों ने असेंबली से शुरू किया था, और असेंबली के बाद हम लोग उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारा मेन गोल था कि जितनी कम्युनिकेशन गैप मशीन के और ह्यूमन के बीच में खत्म हो सकता है उतना अच्छा है। तो हम लोगों ने उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। अब हम बेसिकली उस लेवल पर हैं कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं,
और वो हमारी पूरी बात समझ रहा है। अब वो सेमी कॉलन मिसिंग जो है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मुझे याद है कि C++ में ब्लू कंपाइलर ना वो एरर देता था, स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कॉलन। तो मैं ऐसे मजाक बना के बोलता था कि यार जब तुम्हें पता है कि स्टेटमेंट मिसिंग है तो डाल दो ना खुद ही, हमें क्यों बोल रहे हो कि स्टेटमेंट मिसिंग, अब ये भी हम डालें। ठीक है, तो ये आई होप के सवाल का जवाब आ गया आप सब लोगों के पास। और क्योंकि ये सवाल मेरे पास बहुत सारा आता है तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ अपनी, और थोड़ा सा ना हम एजेंटिक फ्यूचर के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यस, लेट्स स्टार्ट। ओके, किसी ने वैसे एंटी ग्रेविटी यूज किया है पहले? आई थिंक अब तक तो कर लिया होगा। बहुत सारे लोग। ओके, तो बेसिकली ना हम लोग ना, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना। ठीक है? मेरे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, देसी पेरेंट्स, वो हमें अक्सर ऐसे बोलते हैं कि हम तो पहाड़ पे चढ़ के 2 किलोमीटर ट्रेवल करते थे और उसके बाद जो है ना हमारा स्कूल आता था। आप लोगों के पास तो नीचे वैन आती है और आपको वैन में बिठाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहां से मुझे याद आता है कि यार देयर आर टू मच आजकल पहाड़ पे चढ़ के जाने की स्टोरी जो मेरे पास है। मतलब मैं बोलता हूँ कि यार हम लोग जो बक्स वक्त करते थे ना, तो उसमें ना बाकायदा स्टैक और फ्लो, चाइनीज ब्लॉग और गिटअप के शूर और मीडियम की पोस्टें और पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकालना होता था बग को कैसे फिक्स करते हैं। तो ये हमारी पहाड़ पे चढ़ने वाली स्टोरी है। सही है। अब आजकल क्या होता है, हम AI को बोलते हैं और वो हमें एक मंजन भेज देती है कि भाई आपका बग फिक्स हो। ठीक है, तो मैं आजकल वाइब कोडिंग कर रहा हूँ, डेवलपर होके वाइब कोडिंग कर रहा हूँ बेसिकली। सही है, शिफ्ट करोगे ऊपर, मैं अपनी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, लेकिन मेरा वाइब कोडिंग करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। आज थोड़ा सा मैं इसका डेमो भी दे दूंगा कि कैसे होता है। और एंड्रॉयड में मैं GD हूँ, और तकरीबन 12 साल हो गए मुझे एंड्रॉयड पे काम करते हुए। ठीक है, और कितनी मजे की बात है ना कि हमारे टाइम पे ना हमें सिखाया गया कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो 10 साल लगा दिए एक्सपीरियंस गेन करने में, और जैसे ही एक्सपीरियंस गेन किया ना कोडिंग ही खत्म हो गई। अब $20 में जो है ना वो सारा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है चाहे GPT में, और हम यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि अब एक्सपीरियंस का करें क्या। ठीक है, सो ओपन सोर्स मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किया है, लेकिन मुझे हर बार बड़ा दुख होता है ये देख के कि गूगल समर ऑफ कोड में पाकिस्तान से 6 लोग जा रहे हैं, 7 लोग जा रहे हैं। मीनवाइल जब हम इंडिया को कंपेयर करते हैं तो इंडिया में 1800 2000 लोग जाते हैं। तो बड़ा अजीब सा कंपैरिजन है कि हम लोग ओपन सोर्स में पता नहीं क्यों नहीं है भाई, लेकिन होना चाहिए। ओके, सो मेरा एक न्यूज़ लेटर है शिप करो का, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप प्लीज वो ज्वाइन कर दें, जहाँ पे मैं बिल्डिंग इन पब्लिक और प्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें बताता हूँ। सही है, ये है वो चीज जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया कि नॉर्मली तो मैं पूछता हूँ इस पिक्चर का मतलब है क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी, तो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ कि इस पिक्चर का मतलब क्या है। ठीक है, कि जब हम इस टाइम पे ना, पुराने जमाने में ना कोई बग फिक्स करते थे ना, तो हमारे पास लाइन खुली होती थी ना, टैग और फ्लो की, मीडियम की, पोस्टें की और सारा कुछ। और जब वो बग फिक्स हो जाता है ना, उसके बाद हम लाइन में ना सारे टैब बंद करते हैं, टिक 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 टिक। और जो वो फीलिंग होती है ना, मतलब अनडिफाइनेबल फीलिंग है। तो जब से वाइब कोडिंग आई है ना, तब से मिस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बग फिक्स हो जाता है अगले प्रॉम्प्ट में, और उसके बाद सोच रहा हूँ तो व्हाट नेक्स्ट, चलो काम करो यार आगे। सही, तो ये है वो पिक्चर तो मैंने रिकॉर्ड की थी। जब हम जेन AI की बात करते हैं ना कोडिंग में, कि कोडिंग में AI कहाँ लाए करती है, तो 3 तरह के लेवल हमें नजर आ रहे हैं। पहला लेवल है चैट का, और मुझे बड़ा अजीब सा, मतलब लिटरली इतना अजीब लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में सीनियर किस्म के डेवलपर्स और अच्छे वाले डेवलपर स्टिल चैट GPT में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सवाल को, कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। भाई अगर आप अभी तक चैट जीपीटी से कोडिंग करवा रहे हो ना, तो यू आर बेसिकली डायनोसॉर। तो इसके बाद वेरी लो कॉन्टेक्ट होता है, और जो है ना हमारे पास
हेलो, आवाज आ रही है? हम्म। इसके बाद वेरी लो कॉन्टेक्स्ट होता है और ये यूटिलिटी मेथड और स्ट्रिंग को रिवर्स करना इन सब चीजों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बोल रहे हो ना कि इट्स नॉट गुड, उसके बाद को पायलट है। मतलब अजीब बात है कि माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट रिलीज किया उस टाइम पे जब एक्चुअली कोडिंग में एआई एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उसके बाद इतना इररिलेवेंट हो गया जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। टॉक अबाउट थिंग्स, तो गिटअप भी मरने वाला है, पता नहीं क्या होगा। और उसके बाद फिर हम आते हैं एजेंट्स के ऊपर कि आई होप कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एजेंट्स कर रहे होंगे। अगर आज तक नहीं कर रहे हैं ना, तो अभी सेशन में मैं आपको एजेंटिक पावर दिखा दूंगा कि क्या होगा। ठीक है, एजेंट्स का मतलब है कि आप प्रोजेक्ट का पूरा एक्सेस एआई को पकड़ाते हो और वो फिर आपके बिहाफ पे जो है ना वो ऑपरेट करना शुरू कर देते हो। बहुत सारे टूल्स होते हैं, क्लाउड हो गया, लवबल हो गया, कर्सर हो गया, एंटी ग्रेविटी हो गया। आज हम एंटी ग्रेविटी करेंगे। ठीक है, इस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा अच्छा है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा कौन सा अच्छा है, लेकिन वो लंबा डिबेट है। वाइब कोडिंग का मतलब है टेक डेप्थ। लेकिन टेक डेप्थ क्या है, ये बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम लोग जो है ना कोडिंग में ना टेक डेप्थ को इस तरह से यूज करते हैं कि एक ऐसा कोड जिसका किसी को मतलब ना पता होना हो, वो टेक डेप्थ है। तो एक बंदा है, वह कंपनी में जॉब कर रहा है और उसने एक प्रोडक्ट बनाई, उसने बहुत सारा काम किया उसके ऊपर, वो जॉब छोड़ के चला गया। उसके बाद दूसरा आया, अब उसको नहीं पता, उसने डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं की पुराने वाले बंदे ने। अब दूसरा आया और उसको बोला जाता है यार इसको छेड़ना नहीं, बस ये चल रहा है ऐसे, इसको आप छेड़ोगे तो हिल जाएगा, ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं टेक डेप्थ। सही है, और हमारी कोशिश होती है एज अ डेवलपर कि हम टेक डेप्थ को जितना मिनिमाइज से मिनिमाइज कर सकते हैं ना उतना अच्छा है। तो हर 2-4 महीने के बाद रीफैक्टरिंग का एक स्प्रिंट शुरू होता है और उसमें रीफैक्टरिंग करते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस नया टेक डेप्थ शुरू आना शुरू हो जाता है। नए मेथड्स ऐसे होते हैं तो उस टाइम पे डेडलाइन के चक्कर में हाँ जब अभी बना दो बाद में देखेंगे इसको, इस तरह से करके बना देते हैं और उसके बाद वो टेक डेप्थ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर हम अगेन वापस उसके ऊपर आ जाते हैं कि चलो अब रीफैक्टर करते हैं। तो ये सब मेरी लाइफ में चल रहा था प्रोग्रामर। और फिर अचानक से क्या हुआ, अचानक से कर्सर के डैशबोर्ड लोगों ने शेयर करना शुरू कर लिए कि 2 मिलियन लाइंस ऑफ कोड मैंने लिख लिया, 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड लिख लिया। और मैं उसको देख रहा हूँ कि 1 मिलियन लाइंस ऑफ कोड नहीं है, ये 1 मिलियन लाइंस ऑफ टेक डेटा है, क्योंकि टेक्निकली हमें पता ही नहीं है कि कोड में क्या लिख रहा है। सही है, और फिर ये सारे ड्रामे, डेटाबेस लीक होना, सारा कुछ होना, ये पूरा हम अब बेसिकली टेक डेप्थ बनाने को प्राउड से फील कर रहे हैं कि मैं इस लेवल पे टेक डेप्थ बना रहा हूँ। सही है, और उसको हमने वाइब कोडिंग का नाम दे दिया कि वो यार ना वाइब कोडिंग। ठीक है, लेकिन एआई जो है ना, एआई का बेस्ट एग्जांपल है ये कि एआई को कंसीडर करो 6 साल का स्मार्ट बच्चा, जिसके बाद नॉलेज तो बहुत है लेकिन विजडम नहीं है। सही है, बच्चा पेड़ पे चढ़ सकता है लेकिन क्या उसको पेड़ पे चढ़ना चाहिए या नहीं, ये आप डिसाइड करोगे। एआई आपको बहुत कुछ करके दे सकती है, एआई कोड लिख के दे सकती है, एआई आर्किटेक्चर बना के दे सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन क्या उसको करना चाहिए या नहीं ये आप डिसाइड करो एज अ वाइब कोडर या कोडर या एजेंट वॉट एवर। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमने इस बच्चे को एक क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया और हमने उसको बोला कि बेटा ये प्लास्टिक का टुकड़ा आप शॉपिंग मॉल में ऐसे वेव करोगे ना तो आपको जो टॉय चाहिए होगा ना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 1 महीने के बाद आपका बिल आएगा। अब हमने बच्चे को क्रेडिट कार्ड तो पकड़ा दिया लेकिन हमने उसको डेट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि क्रेडिट कार्ड इज ए डेट और महीने के बाद हमें पे करना है। तो एआई ये है वाइब कोडिंग जो है ना, वाइब कोडिंग इज वो एआई का 6 साल का बच्चा, हमने उसको क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया और हमको बेटा शुरू हो जा कोडिंग कर तब आके, और हम उस लेवल पे आ गए। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में वाइब कोडिंग के खिलाफ नहीं हूं मैं। अगर आप कोड को अंडरस्टैंड करते हो लाइन बाय लाइन नहीं, एटलीस्ट आपको ये पता है कि चल क्या रहा है, तो उससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगी ना वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो उसके लिए फोकस करो कि जितनी वाइबिंग कम होगी ना उतनी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। तो आंखें बंद करके ना एआई के कोड पे भरोसा नहीं कर रहे, वो एंटी ग्रेविटी बनाए, वो क्लाउड बनाए, वो कर्सर बनाए, वो कोई भी बनाए। यू आर द ड्राइवर, यू आर द पेरेंट उस बच्चे के,
और यू डिसाइड कि उसको पेड़ पे चढ़ना चाहिए या नहीं। तो दैट इज हाउ यू शुड डू द कोडिंग एटलीस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ वैसा ही है, मोटे मोटा चल रहा है, ठीक है, वाइबिंग कर रहे हैं, सही है। तो अब हम डेमो पे आते हैं बेसिकली। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में पूछूं कि अब मैं पूछूंगा कि हमारे पास इसके अलावा, मतलब ये जो अब वाइब कोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब मुझे बताओ कि वाइब कोडिंग अब एक्चुअली में कौन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एआई को यूज करो, कोड रीड नहीं करो और शिप करो, लिटरली शिप करो। ठीक है, तो ये मेरी एक ऐप है जो वाइब कोडेड है टेक्निकली इन अ सेंस, और इसके अलावा और भी ऐप्स हैं। ठीक है, तो डू फॉलो मी इफ यू आर ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेस। अब हम गूगल एंटीग्रेविटी करते हैं। ठीक है, कि हमने जब गूगल एंटीग्रेविटी खोला ना, तो बेसिकली एंटीग्रेविटी इज मोर लाइक क्या कहते हैं, VS कोड, सिंपल, सही है। और VS कोड का मतलब ये होता है कि जिस जिस बंदे ने VS कोड यूज किया होगा, सही है, वो पता होता है कि VS कोड का सारी एक्सटेंशन, तो सारा इंटरफेस सब सिमिलर है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, वो है ये ओपन एजेंट मैनेजर। और ये एजेंट मैनेजर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कंडक्टर ने स्टार्ट किया था, कंडक्टर डॉट बिल्ड। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब फ्री वाला है। इन्होंने स्टार्ट किया था कि भाई आप ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हो और डिफरेंट टूल्स के साथ और सारा कुछ, और फिर बाद में इन सब ने आहिस्ता आहिस्ता कॉपी पेस्ट करना शुरू कर। तो अब कर्सर में भी आ गया है एजेंट मैनेजर, और एंटीग्रेविटी में जब स्टार्ट किया तो उन्होंने ऐसे किया। सिंपल वर्ड्स में आप यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करते हो और उन सारे प्रोजेक्ट में अलग अलग कॉन्वर्सेशन बनाते हो और उनको बोलते रहते हो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। आज हम कंडक्टर के साथ काम नहीं करेंगे, आज हम वैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोगों को पता हो कि कंडक्टर का मतलब क्या है। तो दिस इज आवर एंटीग्रेविटी, और यहाँ पे प्रोजेक्ट खोलते हैं। तो आज के जो प्रोजेक्ट है ना, वो है क्या कहते हैं, अपना CV एनालाइजर, सही है। तो मुझे बताओ कि कितने लोग हैं, हम कहते हैं CV एनालाइजर। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें रिमोट जॉब वगैरह में और जॉब में ढूंढ रहे होंगे। तो किसी को पता है कि ATS का मतलब क्या है? कोई मुझे लिख के दे सकता है यहाँ पे डेफिनेशन में, व्हाट इज ATS? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, यस। तो देखो, जब भी आप अप्लाई करते हो ना, तो स्पेशली रिमोट जॉब्स में जब आप अप्लाई करते हो ना, तो आपकी जो CV है ना, वो ह्यूमन के पास पहुंचती नहीं। उनके पास एक सिस्टम लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं ATS। और ATS क्या करता है, आपकी CV को रीड करता है और रिव्यू करता है, और वो डिसाइड करता है कि आपकी CV आगे जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो आपके पास जो नो रिप्लाई वाला कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारी कंपनी रिप्लाई नहीं करती, और आपके पास जो ऑटोमेटिक रिजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो सारा ATS से होता है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मेरी एक रोस्ट माय रिज्यूम की जो है वो सर्विस है, उसमें लोग कॉल बुक करके आते हैं कि मेरी CV रिव्यू करो। तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एक फैंसी किस्म के डिजाइन लेके आते हैं, फैंसी किस्म की CV लेके आते हैं। तो बड़ा अजीब सा होता है भाई, कोई फैंसी किस्म की CV बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। लिटरली आपको जो CV चाहिए ना, वो आपको इस तरह की चाहिए, remote.com/ATS टेम्पलेट। ये है आपका टेम्पलेट CV। इस तरह की CV होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो CV है ना, इसका जो ATS स्कोर होगा वो आपको बड़ा काम है, सही। तो ATS जो है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि वो आपके CV को एनालाइज करता है और वो डिसाइड करता है कि आपको आगे जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आज हम एंटीग्रेविटी एक ATS एनालाइजर बनाएंगे। बहुत सारे ATS आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। तो आज हम जो है ना एक ATS एनालाइजर बनाएंगे, तो बेसिकली हम कोई भी उसको PDF देंगे ना, तो वो हमें उसको एनालाइज करके बताएगा कि इसका ATS स्कोर कितना है।
वो इंटरनेट के ऊपर आपको जितने भी ये एटीएस मिलते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि सही है। हर किसी ने अपना एल्गोरिथम बनाया हुआ है, हर किसी ने अपना कैलकुलेशन क्राइटेरिया बनाया हुआ है। तो जब आप जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि 6-7 एटीएस में अपनी सीवी दो और उन सबकी सजेशन नोट करो और उस हिसाब से अपनी सीवी कंपाइल करो, किसी एक पे भरोसा नहीं करना, ठीक है। तो एटीएस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मैं जानबूझ के एग्जांपल पिक करना चाह रहा था ताकि आपको थोड़ा सा जॉब हंट और इन सब चीजों में भी पता लग जाए, रिमोट करो जो मेरा इनिशिएटिव है उसके लेवल पे, ठीक है। तो वेरी इजी है कि मैं इसको बोलूंगा कि अब मसला क्या है कि पहला मसला है कि हम इसको बोलते हैं कि भाई मुझे जो है ना एटीएस सीवी बननी। तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पीआरडी बनाते हैं। किसी को पता है पीआरडी क्या होता है? पीआरडी लिख लो, एनीवन? पीआरडी, ओके। तो पीआरडी का मतलब होता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैं लेट्स से जेमिनी खोलता हूँ, ठीक है, मैंने चैटजीपीटी खोला था, सही है। और मैं इसको बोलता हूँ राइट मी अ पीआरडी फॉर एंटी ग्रेविटी ऑफ simple offline web app which accepts users resume in PDF and analyzes it and calculates the ATS score and gives suggestions, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हम ये सेम चीज एंटी ग्रेविटी में डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो 3 लाइनों का है बस। तो 3 लाइनों में हम कितना कॉन्टेक्ट दे सकते हैं, उसके 2 तरीके। पहला कि आप प्लान मोड में आओ और उसको बोलो कि भाई मैं यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू मेक अ सिंपल वेब ऐप, लेट्स प्लान दिस फर्स्ट बिफोर डूइंग एनी, ठीक है। क्योंकि 70% जो आपका वाइब कोडिंग में फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्लानिंग पे, 30% इज एक्चुअल कोडिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रैंडमली 2 लाइनें लिखी और फिर बैठ के अल्लाह के भरोसे पे देखो क्या बनता है। भाई कौन बनेगा, करोड़पति वाला काम होगा, फिर कुछ भी हो सकता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, पहला जो हमें नजर आता है, ओह वाह तो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। वैसे वो पर्पल और ब्लू ही होता है, 10 माइल दूर से आपको पता लग जाता है कि ये वाइब कोडेड है उसी सेम पुराने थीम में जो आप हर जगह पे दिखा दिखा के ना बंदा तंग आ गया है, सही। लेकिन हमें वो पसंद आ जाता है, हम कहते हैं यार सही है, बेस्ट, लेट्स गो विद इट, ठीक है। तो क्या करना है, 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है, यहाँ तो प्लानिंग करो, यहाँ तो पीआरडी के ऊपर फोकस, ठीक है। मैंने आपको भी दोनों करके दिखाए। तो अब पीआरडी से क्या होता है, पीआरडी का मतलब है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ये नॉर्मली लोग प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना अपनी कंपनी में यूज करते हैं, सही है। तो हम लोग अब एटीएस की हमने सीवी दी और उसको हमने बोला कि हमें पीआरडी बना दे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब इसने हमें पीआरडी बना के दी है एग्जैक्टिव समरी कि भाई हमारा जो क्या कहते हैं, एग्जैक्टिव समरी ये है कि हमें एक ऑफलाइन कैपेबल एप्लीकेशन बनानी है और टारगेट ऑडियंस रिमोट जॉब सीकर्स और स्टूडेंट और एंट्री लेवल हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है, एटीएस एनालिसिस इंजन ये है, और उसके बाद स्कोरिंग सिस्टम जो है 100 है और एक्शनेबल सजेशन है। और उसने एक लंबा चौड़ा जो है ना एक टैग लिख के दे दिया, इसमें यूजर फ्लो लिख के दे दिया और उसने सारी। अब ये जब आप उसको पकड़ा के दोगे ना एंटी ग्रेविटी को, तो आपको रिजल्ट अलग मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 लाइनों वाला वो कमेंट डाल के दोगे ना तो आपको रिजल्ट अलग मिलेगा। अब इसमें ये पर्सनल अप्रोच, ये पीआरडी वाली अप्रोच ना पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। उसका रीजन ये है कि मैंने देखा है कि लोग चैटजीपीटी में, जेमिनी में जाते हैं और उसको बोलते हैं मुझे पीआरडी लिख के दो, और उसने क्या लिखा है वो पढ़ते भी नहीं है। यार इतना लंबा कौन पढ़ता है। मैंने अभी पढ़ने की कोशिश की, मैं नहीं पढ़ पाया, आप लोगों के सामने 3-4 लाइनें पढ़ गए, फिर मैंने स्किप करना शुरू कर दिया। सबके साथ ऐसे होता है, फिर कहते हैं हाँ सही है, ठीक है कॉपी करो, कॉपी करके सीधा पकड़ा दिया और उसके बाद फिर हमें वही पर्पल कलर की यूआई मिली जो हमें मिलती है, ठीक है। उसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हम जो है ना वो प्लानिंग मोड पे फोकस करें।
प्लानिंग मोड में ये जो है ना क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्या होना चाहिए। ठीक है, अब इसने 3 क्वेश्चन हमने पूछे कि जॉब डिस्क्रिप्शन इनपुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैं कहता हूँ नहीं। ठीक है, और स्कोर डिस्प्ले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ भाई सही है। फाइल स्ट्रक्चर के सिंपल इंडेक्स HTML सही है। नो नीड टू जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रेस्ट इज फाइन। आलो हमने पता भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि क्या बदलेगा। बजाज भाई आपका एंटी ग्रेविटी पेड प्लान है जी, थैंक यू गूगल, उन्होंने हमें दिया है। ये है आई थिंक प्रो प्लान है। कहाँ गया, अच्छा हाँ, और दूसरा ये कि आजकल एंटी ग्रेविटी के इशू थोड़े हो रहे हैं। तो बेसिकली आप जब भी काम करने बैठो ना, तो यहाँ सेटिंग्स में जाओ और यहाँ से एंटी ग्रेविटी की दूसरे सेटिंग खोलो और मॉडल्स खोलो और मेक श्योर करो कि आप किस तरह की लिमिट्स में कितना आप हिट करोगे। ठीक है, सही है, ओके। तो अब हमें प्लान मिला है और उसने वो बनाना शुरू कर दिया है। ये ऑफलाइन है, नो सर्वर रिक्वायर्ड है, API कॉल नहीं होगी, सारा कुछ ऑफलाइन है। और स्कोर ब्रेकडाउन और एक्सपोर्ट डाउनलोड, लिटरली आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि जितने भी CV एनालाइजर हैं जो आपसे $10 $5 दे रहे हैं, आपको अभी आधे घंटे में जो है ना अपना CV एनालाइजर मिलेगा और आप सोचेंगे कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। सही है, दिस इज द होल गेम, दिस इज द होल गेम ऑफ सॉस। सही है, मैं आजकल ये सुन रहा हूँ कि अब तो दादी माँ भी अपनी टू डू लिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन और ये सब बना सकती है। तो सास तो खत्म हो गया, सास को बाय करने की भी जरूरत नहीं है। तो कोई मुझे बताएगा कि क्या वाकई सास डेड हो गया या नहीं हो गया जब तक ये जनरेट करे। सास डेड नहीं हुआ, नो। देखिए शुरू से ना SaaS was never about product, it was always about convenience। तो ये और हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब मैंने जब डायरी ऐप बनाई ना, तो मेरा सवाल, मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते थे तो इसमें यूनिक क्या है, व्हाट इज न्यू इन दिस, व्हाट इज यूनिक इन दिस। और हम लोग ना यूनिक को लेकर बहुत अपसेस्ड हैं। और जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना और FIP को देखते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमें यही नजर आता है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो HOD होते हैं, हमारी जो मैनेजमेंट होती है यूनिवर्सिटी की, ये तो पहले बन चुका है, यूनिक बना हुआ, इतना यूनिक हो कि बस। तो भाई अगर चाइना यूनिक यूनिक खेलता ना, तो ना उनके पास WeChat होता, ना उनके पास अलीबाबा होता। WeChat व्हाट्सएप की कॉपी है, अलीबाबा अमेज़न की कॉपी है। उन लोगों ने यूनिक यूनिक नहीं खेला। हम लोग वही ओरिजिनल व्हाट्सएप और वही ओरिजिनल अमेज़न यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना यूनिक नहीं बना पाए। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई एटम बम बनाना है, ये हैबिट ट्रैकर और ये टू डू लिस्ट और ये कौन बनाएगा, इनकी हमें जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक एप्लीकेशन है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ लिटरली ना, कि ये ऐप है हैबिट किट। ये क्या करती है, ये जाती है आपके मोबाइल में ना, बस आपको बताओ कि भाई मैं रोज जिम पे जाऊंगा, मैं रोज कोडिंग करूंगा, मैं रोज रीडिंग करूंगा, मैं रोज वॉक करूंगा, बस खत्म। कोई लॉगिन नहीं, कोई साइन अप नहीं, कोई सर्वर नहीं, कुछ नहीं, बस आप जाते हो, टिक कर दो, बंद कर दो, टिक कर दो, बंद कर दो, टिक कर दो, बंद कर दो, बस वो आपको फैंसी ग्राफ दिखा देता है जिससे आपकी मोटिवेशन हाई होती है। ठीक है, 3 हैबिट्स आप फ्री में डाल सकते हो। अनलिमिटेड हैबिट्स के लिए आपको $2 पे करने मंथली, $2 ओनली। ये भाई साहब $30,000 कमा रहा है महीने पे, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि यूनिक चीज बनाएंगे जिससे हम पैसे बनाएंगे, जिससे हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। और इस भाई को एक और बंदे ने कॉपी किया और उसने नाम रखा हैबिट स्वाइप, और उसने हैबिट किट को टिक करने के बजाय स्वाइप डाला। भाई अगर आपने आज रीडिंग की है, आप स्वाइप करो, आपने वॉक की है, आप स्वाइप करो। $30,000 वाला ये बना रहा है, वो स्वाइप वाला $5,000 बना रहा है। फिर उसको एक और बंदे ने कॉपी किया और वो खुद $1,000 बना रहा है एक हैबिट किट की एप्लीकेशन मंथली। जहाँ पे वो वाला काम हो गया कि राजू खून करने को नहीं बोल रहा, राजू चोर के घर से चोरी करने को बोल रहा है। ठीक है, तो ये यूनिक है ना, इसको साइड में रखो। सही है, कोई एक्चुअल आइडिया उठाओ, कितना भी छोटा हो ना, इट डजंट मैटर। ठीक है, और एक्चुअल में शिफ्ट करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि शिफ्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, डेमोड बनाए जा रहे हैं।
वो डेमो दिखाए जा रहे हैं, वो डेमो लिंक्डइन पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे तो अच्छे नजर आते हैं, लेकिन अगर कोई यूजर उसको यूज नहीं करेगा तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट डेमो। तो वो जो उस डेमो से लेकर प्रोडक्शन तक पहुंचने का जो सफर होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है और वो बहुत बोरिंग भी होता है, क्योंकि हमें एनालिटिक डालने होते हैं, हमें डॉक्यूमेंटेशन डालनी होती है, हमें लैंडिंग पेज बनाना होता है, हमें कॉपी राइटिंग करनी होती है। उसमें वो वाला फ्लेवर नहीं होता जो एक्चुअल डेमो बनाने में और उसमें जो मजा आता है उसमें। ठीक है, तो शिपिंग शुड बी द मेन फोकस। इट डजंट मैटर कि कितना छोटा है। तो लोग ऐसे ऐसे आइडिया से जो है वो कमा रहे हैं, प्रोडक्ट चला रहे हैं कि आपको सोच है। सही है। तो ये अभी तक लगा हुआ है। ओह नाइस, मॉडल जनरेशन एक्सीडेड द मैक्सिमम आउटपुट। नहीं, ये क्या हुआ भाई? जेमिनी पागल हो गया है सेशन के दौरान। ये जितने भी वाइब कोडिंग वाले सेशन है ना, मुझे इनमें ये चीज अच्छी नहीं लगती कि मतलब वाइब कोडिंग के दौरान बंदा क्या करे जब तक ये जनरेट हो रहा है। तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जब तक ये पूरा कर ले ऐप का। किसी ने क्वेश्चन ऑलरेडी डाला हुआ है पहले से ही। अभी आई थिंक मैंने एंटी ग्रेविटी व्हाट अबाउट प्रीवियस स्वेग, अभी तक लोग स्वेग पे ही रुके हुए हैं। कैन वी कॉपी गूगल एंटी ग्रेविटी वाया वाइब कोडिंग? हाँ, आप अपना बना सकते हो, लोग बना रहे हैं अपना भी। सारा प्ले स्टोर पर साइन अप की फी भी है। यस, $25 की फीस है साइन अप। और हाँ, एक और बात मजे की होती है कि अक्सर मतलब जब वाइब कोडिंग नहीं थी ना, तो मुझे बहुत सारे डेवलपर्स से इंटरेक्शन होती है ना, तो वो मुझे बताते हैं कि हम इस आइडिया पे काम कर रहे हैं, हम उस आइडिया पे काम कर रहे हैं, और वो आइडिया कभी रिलीज नहीं होता। बेसिकली एक गिटहब पे रिपॉजिटरी पड़ी हुई होती है और आपके पास एक फोल्डर होता है जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। हमारे पास $1 बिलियन आइडिया आता है, फिर हम उस पर काम करते हैं, फिर जब वो आधा होता है ना, तो उसके बाद हमें 2 बिलियन वाला आइडिया मिल जाता है, तो हम पहले वाले को छोड़ के फिर वो दूसरा बनाते हैं, फिर आधा बना के फिर हमारे पास 4 बिलियन वाला आता है। तो अब तक हम बेसिकली $1 ट्रिलियन पे पहुंच गए। सही है, वो आइडिया कभी रिलीज नहीं हुए। और एक फोल्डर है इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट का, जिसको मैंने नाम दिया है गिटहब ग्रेवयार्ड। ठीक है, तो आप सब लोगों के पास ना एक गिटहब ग्रेवयार्ड जरूर होगा, भर भर के होगा। तो जब ये वाइब कोडिंग आई ना, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार लेवल आ गया, अब तो लोग एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाएंगे। उसका रिजल्ट पता है क्या निकला है? रिजल्ट ये निकला है कि पहले जो गिटहब ग्रेवयार्ड था ना, वो सिर्फ डेवलपर्स के पास था। अब नॉर्मल लोगों के पास भी गिटहब ग्रेवयार्ड बना हुआ है अनकम्प्लीट वाइब कोडेड प्रोजेक्ट का। तो बेसिकली फायदा कोई भी नहीं हुआ, जो पहले चल रहा था उसको हमने ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, सो डोंट बी लाइक दैट, आई विल से। ठीक है, मेरा अभी हैशटैग चल रहा है शिप करो, बस शिप करो। ये नहीं सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, शिप करना है और उसके ऊपर मेन फोकस करो। वाइब कोडिंग के जॉब रोल्स हैं, बिल्कुल हैं, आजकल लोग आ रहे हैं, आजकल आ रहे हैं। लेकिन अभी जो अगला जो 1-2 साल में जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब है ना, वो एआई इंजीनियर की नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब है सिस्टम सिस्टम जिन लोगों को सिस्टम अंडरस्टैंडिंग है, जिन लोगों को ये समझ आ रहा है कि एक पूरा ऐप कैसे बनता है, बैकएंड कहाँ लाया करता है, डेटाबेस कहाँ लाया करता है, एपीआई कहाँ लाया करती है, एआई कहाँ लाया करती है, ये सारी चीजें ना जिनको समझ आती है ना, उनको बड़ा फायदा होगा। उसके लिए आज जैसे ही फ्री हो जाओ ना सेशन से, यूट्यूब खोलो और उसमें जाके सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चन ये जाके सर्च करो। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि व्हाट्सएप का सिस्टम डिजाइन कैसे करते हैं, स्नैपचैट का सिस्टम डिजाइन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मली फांग में, फेसबुक, गूगल और इन सब में पूछे जाते हैं, लेकिन वो सारे आपको मिलेंगे ना, वो सारे वीडियो आप देखोगे ना, तो आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट्सएप के बिहाइंड क्या चल रहा है, फेसबुक के बिहाइंड क्या चल रहा है, और वो आपको प्रॉम्प्टिंग में बहुत हेल्प देगा। लिटरली इतना आपको फायदा होगा प्रॉम्प्टिंग का। मे भी मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से कोडिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजें पहले से पता होती है। जो न्यू हैं, जो वाइब कोडिंग को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी कोडिंग नहीं की है, उनके लिए एडवाइस है, गो अहेड एंड जाके सिस्टम डिजाइन के
वीडियो देख लो ताकि आपको ओवरऑल अंदाजा हो जाए कि एक पूरी प्रोडक्ट बनाने में क्या लगता है। आज एंटी ग्रेविटी को पता नहीं क्या हुआ है, मुझे लगा वैसे वैसे तो बना देता है। ओके, तो हम लोग थे, और क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सी वीडियो? सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चन, ये बेसिकली ये होते हैं वीडियो। अच्छा, सवाल आए हैं और तेजी से सवाल आ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। ऐप एआई के थ्रू बिल्ड करके डिप्लॉय कैसे होगी विदाउट पेइंग? डिपेंड करता है। अगर आप एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो तो आपको वन टाइम $25 पे करने हैं, और अगर आप iOS ऐप बना रहे हो तो आपको $100 पर ईयर पे करने हैं, और अगर आप वेब ऐप बना रहे हो तो फिर आप क्लाउड रन पे भी होस्ट कर सकते हो, और वर्सेल पे भी होस्ट कर सकते हो, और नेटलीफाई पे भी होस्ट कर सकते हो। और अगर कोई एआई की उसमें आप यूज कर रहे हो, एलएलएम वगैरह, इंजन वगैरह एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके बाद जो है ना वो आप फिर उनको रनवे पे या फिर सॉरी रेलवे पे और render.com पे भी आप अपलोड कर सकते हो। और इन सब के बाद फ्री टीएस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कर सकते हो। मतलब मैं आपको बताऊं कि माई डायरी की जो ऐप है वो मुझे ऑन एवरेज $200 प्लस हर महीने देती है, और मैं अभी तक $1 भी खर्च नहीं कर रहा हूँ। सारा कुछ फ्री चल रहा है। कूपाबेस फ्री है, फायरबेस फ्री है, पोस्टऑफ फ्री है, असेंबली है फ्री है, ठीक है। और कौन सी सर्विस है? दो और सर्विस, ओपन राउटर सही है, और ओपन राउटर पे भी जेमिनी फ्लैश लगाया हुआ है तो फ्री टीयर से काम हो जाता है। तो इनिशियली ना आपका फ्री टीयर में बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। मेन थिंग होती है कि हम लोग शुरू में ना बहुत सारी चीजें सोचना शुरू करते हैं, यार ये कैसे होगा, यार कैसे होगा। मतलब फाइल मैं बता रहा हूँ कि एक अक्सर मेरे पास एक जवाब आता है कि मैंने वेब बना दिया, मैंने प्रोडक्ट बना दिया, मैंने अभी लॉन्च नहीं किए। क्यों लॉन्च नहीं किए? सवाल आता है, पाकिस्तान में कोई पेमेंट गेटवे नहीं है। अरे यार क्या मतलब पाकिस्तान में पेमेंट गेटवे नहीं है? मेरे पास एक स्ट्राइप नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ? हाँ भाई ठीक है, मानते हैं स्ट्राइप नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो पेमेंट गेटवे का जो मिथ है ना वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब सिंपल वर्ड में बोलूं, हमने इसको इतना बदनाम किया हुआ है पेमेंट गेटवे को, कि पेमेंट गेटवे खुद सोच रहा होगा कि मैंने क्या कर दिया सर। लेकिन समहाउ ये एक ट्रेंड था, बन गया, चल गया, लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। और लोग उसको देख रहे थे, और लोगों का माइंड में ना ये बात बैठ गई कि पाकिस्तान में कोई पेमेंट गेटवे नहीं, ठीक है। लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, पहला वीडियो ये है, हाउ टू गेट पेड इन पाकिस्तान। मैंने इसमें पूरी कहानी एक्सप्लेन की है कि पाकिस्तान में पेमेंट गेटवे का अल्टरनेटिव क्या है। और आप वेब ऐप बनाओ, मोबाइल ऐप बनाओ, सास बनाओ, माइक्रोसाफ्ट बनाओ, वाट एवर जो भी आप बना रहे हो ना, वो आप एक्चुअली में पाकिस्तान में बैठ के मोनिटाइज कर सकते हो, लिटरल, ठीक है। तो फाइनली जेमिनी ने अपना काम कर दिया और हम लोगों का कंप्लीट हो गया, और उसने अभी हमारे सामने जो है ब्राउजर खोलने की कोशिश की है, एटलीस्ट कर रहा है। हाँ, जेमिनी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि जेमिनी के पास गूगल क्रोम की डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। इससे फायदा ये होता है कि वो खुद वो फाइल खोलता है, उसके लॉग चेक करता है, उसका इंटरफेस चेक करता है, वो लिटरली उसके पूरे वीडियोस रिकॉर्ड करता है और आपको पूरा दिखाता है कि मैंने इसमें क्या रिकॉर्ड किया। अब वो मुझसे परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं ब्राउजर खोलूं या नहीं खोलूं, तो मैं तो बताऊँ हाँ भाई आप खोलो, ठीक है। ये बनाया है इतनी देर के बाद टेस्ट। तो सही बोला मुझे, राहील है एक बंदा, उसने मुझे बोला था कि यार एंटी ग्रेविटी पे वर्कशॉप करना मुश्किल है, वो रन टाइम पे पागल हो जाता है आज सब वो पागल हुआ पड़ा है। तो ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हो ना इसके बॉर्डर्स में जो ऐसे ऐसे हो रहे थे, उसका मतलब है कि जेमिनी एंटी ग्रेविटी जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और रिकॉर्ड करके वो आपको देता है। बेसिकली इसके फाइल की लिमिट हिट हो रही है, तो ये कह रहा है कि मैं एक सिंपल सा टेस्ट फाइल बनाता हूँ और उसको पहले बना के देखता हूँ और उसके बाद फिर करता हूँ। तो अभी तक ये वर्किंग कर रहा है। इस चीज में ना थोड़ा सा तंग कर रहा है, बेसिकली आज बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, ठीक। तो which skills, prompts, MCP servers and hooks are good if you are using anti-gravity for, हाँ चला गया,
मोबाइल एप्लीकेशन तो इतने मैसेज आ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा वसीम भाई आपने, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो होगा तो पहले पहले जाओ mcpmarket.com के ऊपर, सही है, मैं यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, एमसीपी मार्केट के ऊपर आपको बहुत सारे एमसीपी सर्विस मिलेंगे और बेसिकली आपको जाके सर्च करना है, तो इसमें आपको सर्च करना है कॉन्टेक्ट 7। ठीक है, कॉन्टेक्ट 7 जो है ना एक एमसीपी है जो बेसिकली आपको फ्री में मिलता है। इस कॉन्टेक्ट 7 एमसीपी का बेस्ट फायदा ये है कि एआई को जब भी कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है ना कोड की, कि ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी, तो इंटरनेट के ऊपर जाता है और वो तो क्या मानना शुरू कर देता है। जो उसको आर्टिकल मिलता है वो उसको कर देता है। अब वो आर्टिकल अपडेटेड था नहीं था, वो लेटेस्ट था, उसमें क्या था, वो फंक्शन है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, चेंज हो गया, क्या हुआ, तो अक्सर वो पहले गलत कर रहा है, फिर कहता है सॉरी यार मैं वापस ही करता हूँ, उसको दूसरे तरीके से करता हूँ, ये नहीं चल रहा। बेसिकली टाइम वेस्ट हो रहा है, कॉन्टेक्ट वेस्ट हो रहे हैं और टोकन वेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट 7 है। कॉन्टेक्ट 7 एआई को लेटेस्ट मोस्ट अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन देता है किसी भी लैंग्वेज में। ये बहुत ज्यादा अपडेटेड हो रहा है, ये तकरीबन फ्री है। ठीक है, तो ये पहला टूल है जो आपके पास होना चाहिए मोबाइल के लिए। उसके बाद हमारे पास एक और है skills.sh, ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो skills.sh के ऊपर स्किल्स होते हैं। एमसीपी जो है उसका मतलब ये होता है कि आप एक एक्सटर्नल डेटा दे रहे हो उसको इंटीग्रेट, और आप उसकी जो है ना पूरी सेटिंग जो है ना यहाँ से होती है, और आप इसमें जाते हो और यहाँ पे आप खोलते हो इंटीग्रेट सेटिंग्स होते हैं, एक्सटेंशंस, ये है एडिटर सेटिंग, तो एडिटर सेटिंग इसमें होता है मॉडल्स, मतलब कहते हैं कस्टमाइज, हाँ कस्टमाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप बताते हो कि कौन से एमसीपी सर्वर्स हैं जो आप इंस्टॉल। तो अगर आपको अपनी कोई एंटी ग्रेविटी की एप्लीकेशन अपलोड करनी है ना, तो गूगल क्लाउड रन का एमसीपी सर्वर आता है, तो यहाँ से इंस्टॉल करो, वो आपको इंस्टॉल करके दे देता है। और उसके बाद आप मैजिक करते हो। मैजिक क्या है, आप एंटी ग्रेविटी को बोलते हो ये गूगल क्लाउड पे अपलोड करो, वो कर देता है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जरूरत भी नहीं होती, आपको पता भी नहीं होता कि हुआ क्या। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे होते हैं। डार्ट का है, फायरबेस का है, और स्पैनर का है। और जो भाई ने सवाल पूछा था कि मोबाइल के लिए क्या है, मोबाइल के लिए ये एक चीज है एंड्रॉयड CLI, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, आप जरूर देखो। एंड्रॉयड CLI क्या करती है कि जो काम आप एंड्रॉयड एक्सप्लोरो में कर रहे थे ना, वो आप एंड्रॉयड एक्सप्लोरो में करने की जरूरत ही नहीं है। तो एंड्रॉयड एक्सप्लोरो बहुत हैवी है, बहुत रैम लेता है, उसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए, नासा वाला कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि नॉर्मल M3 M4 पर तो काम नहीं चलता एंड्रॉयड एक्सप्लोरो। तो अब उसकी जरूरत नहीं है, आप एंड्रॉयड CLI इंस्टॉल करोगे, मैक पे, विंडोज पे, टर्मिनल पे होगा, तो सारा कुछ आप कंपाइलिंग भी उससे कर रहे हो, कोड रन भी उससे कर रहे हो, इम्यूलेटर मैनेजमेंट भी उससे कर रहे हो, डिवाइसेज मैनेजमेंट चालू उससे कर रहे हो। ठीक है, लिटरली आप टर्मिनल में पूरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो। ये क्यों बनाई है इन्होंने, गूगल वालों ने? ये एजेंट्स के लिए बनाई है कि आप एंटी ग्रेविटी को बोलते हो कि मैंने एंड्रॉयड CLI इंस्टॉल की हुई है, वो खुद ही अब आपके ब्याह पे सारा कुछ करेगा। ठीक है, और इसके बाद दूसरी है एंड्रॉयड स्किल। ये कुछ स्किल्स हैं जो एंड्रॉयड के मॉडर्न आर्किटेक्चर, MBPM और सारे पैटर्न जो हैं उनको अंडरस्टैंड करता है। ये जाके इंस्टॉल करो और अपने उसमें डालो। मतलब लिटरली आप जब ये कमांड चलाओगे ना, तो आपका वो पूरा एंटी ग्रेविटी क्लाउड जिस पे भी है ना, वो सारा उसको लगा देता है। तो एंड्रॉयड डेवलपर के लिए, मोबाइल डेवलपर के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई कैन सी राइट। ओके, अब देखें कि भाई ने क्या किया अभी तक। और ये जो है ना अपना ये जो वेबसाइट मैंने बताई एजेंट्स की, स्किल्स की और MCP की, यहाँ पे इतने MCP सर्वर्स हैं कि आप सोचते। लेकिन एक बात याद रखना कि MCP टोकन्स कंज्यूम करता है। ठीक है, तो MCP को हमेशा डिसेबल रखो। यहाँ से सेटिंग्स में जाओ और MCP को हमेशा यहाँ से डिसेबल रखो। और जब आपको जरूरत है ना कि अब मुझे कॉन्टेक्ट 7 की जरूरत है,
तो आप उस टाइम पे ऑन करोगे, प्रॉम्प्ट डालोगे, फिर वापस ऑफ करो, जैसे रिजल्ट आ जाएगा। इससे आपका टोकन का फायदा होगा। ठीक है, और स्किल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी स्किल्स हैं। ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्किल है फ्रंट एंड डिजाइन का। लेकिन मैं आपको आज डिजाइन का एक तरीका बताऊंगा कि डिजाइन कैसे करते हैं, पर्पल UI से जान कैसे छुड़ाते हैं। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब हमारा भाई साहब जो है वो आगे आएगा। लेकिन समाओ ये आज नहीं आ रहा। मैं आपको एक पुराना प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था, ATS स्कोर का। वो तो मैंने लाइव बनाया था वहां पे। सही है, ये था उसका प्रोजेक्ट जो उसने बना के दिया था। लेकिन इसने ऐसा नहीं बना, उसने मुझे एक बड़ा पप्पू किस्म का पर्पल कलर का डार्क मोड वाला UI दिया था, जो हमेशा देता है। ठीक है, लेकिन इसको कैसे चेंज किया इस पर्पल में, इस पिंक कलर में और इस पूरे इंटरफेस में, पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। कि हम एक CV उठाते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे पास बहुत सारे CV होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, लोगों CV बुक करते हैं। ये एक CV है, चलो फैंसी डिजाइन है, तो ये देखेंगे तो बताएगा कि भाई ये CV, इसका स्कोर देखो कितना है, 4। क्यों? ये सब चीजें नहीं है, नेम डिटेक्टेड और ये। अब हम इसको वापस से एक वो वाली CV उठाते हैं जैसे ये थी। ठीक है, तो इसका स्कोर अब देखो क्या आता है। इसका स्कोर आया 75। ठीक है, अब इसने बता दिया, नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, लिंक्डइन नहीं है, लोकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस में सब मेंशन है, एजुकेशन में डिग्री लेवल नहीं मेंशन, इंस्टीट्यूट नेम नहीं मेंशन, सॉफ्ट स्किल मेंशन नहीं है, और प्रोफेशनल समरी नहीं डाली हुई, और वैल्यू प्रोपोजिशन सही तरह से कम्युनिकेट नहीं की है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आपको टेम्पलेट चाहिए होगा ना तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, उसमें एक चीट शीट भी है और उसमें पूरा एक्सप्लेन करता है कि आपको एक अच्छी CV कैसे बना सकते हैं। अब डिजाइन के ऊपर आते हैं कि मुझे इसको जो है ना डिजाइन को चेंज करें तो मैं कैसे करूँ। ठीक है, कोई लवेबल की जरूरत नहीं, कोई क्लॉथ डिजाइन की जरूरत नहीं, कोई फिग्मा की जरूरत नहीं, कोई गूगल स्टिच की भी जरूरत नहीं। वैसे गूगल स्टिच कर सकते हो आप। ठीक है, गूगल स्टिच सुना है किसी ने? गूगल स्टिच डिजाइन के लिए यूज होता है और उसमें आप डिजाइन करते हो AI के साथ। ठीक है, और बेसिकली आप क्या करते हो, आप यहाँ पे जाते हो सेटिंग्स में और क्या कहते हैं कस्टमाइज में जाते हो और यहाँ पे जाके सर्च करते हो कि भाई मुझे जो है ना गूगल स्टिच का MCP चाहिए। इसमें है, लिस्ट में ये है। ठीक है, ये आप ऐड करते हो और यहाँ पे आप स्टिच की डालते हो और वो की आपको मिलती है जहाँ से सेटिंग्स में जाकर। ठीक है, तो इधर जाते हो और यहाँ से जाके आप API की क्रिएट करते हो और वो उसको पकड़ाते हो और उसके बाद फिर आपको स्टिच में करने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई ये मुझे बना के दो, ये मुझे बना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे तो अक्सर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, अक्सर हमारे पास ये नहीं होता। जैसे मैंने उस दिन बोला था कि भाई मैं एक ATS रिज्यूम एनालाइजर बना रहा हूँ, यूजर अपलोड करेगा CV और उसका जो मुझे डिजाइन बना कर, तो उसने मुझे डिजाइन बना के दिया। ठीक है, सही है, और अब इसको मैं फिग्मा में एक्सपोर्ट करूंगा या फिर उसको डायरेक्ट उसमें एक्सपोर्ट करूंगा इमेजेस में और बहुत सारी मेरी एंटी ग्रेविटी को पकड़ाऊंगा और उसको बोलूंगा कि भाई ये मुझे डिजाइन करके दो, तो आपको ये डिजाइन करके देगा। ठीक है, लेकिन इस सेम चीज को हम डायरेक्ट एंटी ग्रेविटी में करते हैं API की डालते और उसको बोलते हैं कि ये हमारी कॉन्वर्सेशन पूरी चल रही है, ये पूरा डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं स्टिच को यूज करो और मुझे डिजाइन बना दो। तो उसमें वो पूरा एक्सपोर्ट का पेस्ट और सब करने की जरूरत नहीं होती, वो एंटी ग्रेविटी आपके बेहाफ पे स्टिच को यूज करता है और आपको सारा रिजल्ट देता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो है डिजाइन MD। ठीक है, डिजाइन MD गूगल वालों ने बनाया और उसका मतलब ये है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि AI को डिजाइन बताते कैसे कि क्या बनाना है। तो उसका एक फाइल होता है .md का, जिसमें लिखा होता है कौन से कलर्स हैं, कौन सी स्टाइल है, बटन का क्या होना चाहिए, प्राइमरी क्या होना चाहिए, सेकेंडरी क्या होना चाहिए और उनके कंपोनेंट किस तरह के होने चाहिए, सारी चीजें वो डिजाइन MD में आपको बताते हैं। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया है कि लोगों ने मार्केट प्लेसेस बना दी हैं जहाँ पे आपको सारे डिजाइन MD के फाइल्स मिल जाए। अब लेट्स से जर्नी UI है, इसका बड़ा अच्छा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये डाउनलोड MD करता हूँ
और बल्कि मैं कॉपी क्लिपबोर्ड करता हूँ और तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यूज द डिजाइन एमडी अप्रोच एंड हेयर इज द फाइल। ठीक, और मैं इसको ये फाइल अपलोड करके देता हूँ। हाँ, डाउनलोड हो गया। ये हमारा डिजाइन एमडी का फाइल है और मैंने, ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट में डाला, सही है। और ये है हमारा डिजाइन एमडी का क्वेस्ट यूआई का फाइल। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये इस प्रोजेक्ट को क्वेस्ट यूआई का जो डिजाइन है ना उसके हिसाब से चेंज करें। अब क्वेस्ट यूआई के डिजाइन में क्या लिखा हुआ है, ये है डिजाइन फैंटेसी इंस्पायर्ड ऑन एन आरपीजी स्टाइल बिल्ड सिस्टम है। और इसके कलर जो है, प्राइमरी कलर ये है, सेकेंडरी कलर ये है, टाइपोग्राफी में हेडलाइन फॉन्ट ये है, बॉडी फॉन्ट ये है, H1 H2 H3 इस तरह के स्पेसिंग में ये हो रहा है, और बॉर्डर रेडियस में ये हो रहा है, एलिवेशन, और बेसिकली वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं एक डिजाइन एमटी के फाइल में कि क्या है क्या नहीं, सिंपल। तो एंड में लिखा हुआ है कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं डू और डोंट्स की, कि ये नहीं करो ये करो। ठीक है, ये आपको फाइल जो है ना, आप जेमिनी को बोलोगे ना तो मुझे जनरेट करके दे, तो आपको जनरेट करके मिलेगा। आपको बोलोगे मुझे एयरबीएनबी स्टाइल का, या फिर हम अभी करते हैं, फिर मैं इसको बोलता हूँ जेमिनी का, जेमिनी कहाँ गया, ये रहा। मैं इसको न्यू कैट बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ कि स्पॉटिफाई स्टाइल का डिजाइन एमडी फाइल बना के दी। अच्छा, आप जेमिनी में उर्दू में बात कर सकते हैं। अब ये डिजाइन एमडी के स्टाइल को समझ रहा है और आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस लिख के दे रहा है, और उसने आपको फाइल पकड़ा दिया, और ये फाइल आप जब उसको दोगे ना कि भाई ये बना के दो, तो लिटरली आपको सारे वो चेंज करके देगा। इसने भाई ने बना दिया, वो प्रोजेक्ट पर पता नहीं क्यों और हो रहा था, ये पर्पल आ गया, एक और पर्पल आ गया। मतलब देख के ही बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है कि यार क्या सोचा है, आप बड़ा अच्छा बना है गट्टे बैकग्राउंड का, तो ये चेंज कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम स्पॉटिफाई का, और मतलब डिजाइन का जो मेन आइडिया है ना, वो आप डिजाइन एमटी के अप्रोच से बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें मतलब कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो टाइम रन आउट हो रहा है, तो हम अब वापस आते हैं, जब तक ये बना ले तब तक स्लाइडों पे। ठीक है, तो सेशन खत्म हो गया। एक बार हमेशा याद रखना कि एआई आपको सिर्फ 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 70% तक लेके जा सकता है। ठीक है, शुरू में इन्होंने बोला था कि अब जब वो डेविन आया था उन्होंने बोला था भाई एआई की जरूरत ही नहीं है, डेवलपर खत्म हो गए डेवलपर की जरूरत ही नहीं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मतलब आप प्रॉम्प्टिंग थोड़ी अच्छी करो ना, ये 40-42 इंस्ट्रक्शन हैं, अच्छे तरीके से लिखोगे ना तो आपको एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलेगा। फिर उन्होंने बोला नहीं, आप हर चीज को जो है ना स्पेक्स में डालो, एमडी फाइल्स बनाओ, आर्टिस्ट करो, और स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट आ गया, जीएसडी आ गया, बीएसडी आ गया, पॉल आ गया, सारे फ्रेमवर्क आना शुरू हो गए। मंजन वही था कि अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट, और उसके बाद फिर उन्होंने यार अब कोडिंग सीखनी पड़ेगी, उसके बगैर ना आप एआई से सही तरह से काम नहीं, तो अब वापस आ गए उसी पॉइंट पे जब उन्होंने बोला था कि कोडिंग खत्म हो गया। ठीक है, तो एआई आपको सक्सेस सिनेरियो अच्छे तरीके से बना के, एआई अज्यूम करेगी कि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बड़ी स्क्रीन है, आप सक्सेस सिनेरियो। लेकिन जो एज केसेस होते हैं ना कि भाई ऑफलाइन का भी देख लो, अगर नेट बंद हो जाए तो देख लो, अगर बैटरी लो हो जाए तो देख लो, और सिक्योरिटी देख लो, अगर कोई इस तरह से हैक करे तो देख लो, अगर कोई इस तरह, वो सारी चीजें एआई को आपको खुद पता नहीं है। तो जब तक वो आपको बताते रहोगे ना तो आपको अच्छा बना के देगा। ठीक है, लेकिन आप खाली पहले प्रॉम्प्ट के ऊपर भरोसा करके बैठ जाओगे परफेक्ट वाली यूआई पे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी है, तो फिर तो हो गया आपका काम। ठीक है, तो मेरा एक वर्कशॉप है वन डे ऐप dev का, सही है, ये अभी फ्राइडे को होगा। इसमें हम लोग जो है वो, मैं अभी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वन डे ऐप का, और इसमें 3 दिन में पूरी एप्लीकेशन बनेगी लाइव। ठीक है, बता देता हूँ जरा, सही है, कि इसमें वीकेंड में एप्लीकेशन बनेगी पूरी,
मैं वैसे प्लेटफॉर्म में बनाऊंगा, लेकिन आप वो सेम स्ट्रैटेजी जो है वो उसमें यूज कर सकते हो। और बेसिकली इसमें सारी चीजें हैं कि आइडिया से लेकर के आइडिया पिक करते हैं, कहाँ से आइडिया ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं, एसओ कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर उनको एप्लीकेशन बनाने कहते हैं। तो कोटलिन मशीन प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बने जो एंड्रॉयड और आईओएस पे दोनों पे चलती है। और उसके बाद फिर हम रेवेन्यू कैट और पेमेंट गेटवे और बेस और नोटिफिकेशन और ये सब चीजें इंटीग्रेट करते हैं। और उसके बाद फिर उनको एक्चुअली में लैंडिंग पेज बना, प्राइवेसी पॉलिसी बनी, डिस्क्रिप्शन बनी, स्क्रीनशॉट बनी, सारा कुछ, और ये सब कुछ मैं एआई टूल से करता हूँ। ठीक है, तो फ्राइडे को होगा, फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन के बाद आपकी एप्लीकेशन आपके हाथ में होगी, गूगल प्ले के ऊपर लिटरली लाइव है। ठीक है, ये अभी हो रहा है फ्राइडे को। और यस, ये पेड है, ये 10,000 रुपये का है, लेकिन आज के सेशन में जो लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं उनको 30% डिस्काउंट मिलेगा, और ये 7,000 रुपये का पड़ेगा। तो मुझे मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को वो बुक करा दूँ। ठीक है, और क्या था, बस खत्म हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, बाकी ये है रिमोट करो का बुक है जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो अगर आप रिमोट जॉब्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरा एक वर्कशॉप होता है रिमोट करो का, और उसमें 4 घंटे का वर्कशॉप होता है वो। उसमें मैं सारा बताता हूँ कि किस तरह से जो है वो मास्टर क्लास है बेसिकली वो। उसमें पूरी डिटेल्स होती हैं कि किस तरह से जो है ना आपको रिमोट जॉब मिलेगी, और एक एक चीज डिटेल्स में डिस्कस होती है। ये वर्कशॉप कोई पिछले 2 साल में जो है वो 1200-1300 लोगों ने अटेंड किया है। ठीक है, और काफी अच्छे रिव्यू आए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। काशिफ नाम है उस बंदे का, इस्लामाबाद से, कि ऑफर आ गई है 100 की ईयर, आपके बगैर नहीं हो सकता था, थैंक यू सो मच। $1 लाख की जॉब ऑफर मिली थी उसको। उसके बाद और ये है वो रोशना रिव्यू वाली सर्विस, जिसमें मैं एक वीडियो रिव्यू बनाता हूँ आपके सीवी का, कि आप किस तरह से जो है वो आपकी सीवी में क्या क्या चीजें मिसिंग है और क्या क्या चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये है मेरा, और थैंक यू वेरी मच। शिप करोगा न्यूज़लेटर है, वो ज्वाइन कर लो, उसके ऊपर मैं चीजें शेयर करता रहता हूँ। होपफुली यू लाइक द सेशन। लास्ट ट्राई दे देते हैं इसको कि भाई इसने क्या कर दिया, मुझे नहीं पता इसने क्या कर दिया। ठीक है, ये बना है देखो, हमने उसको क्वेस्ट यूआई का डिजाइन दिया था, तो उसने हमें क्वेस्ट यूआई का डिजाइन बना दिया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई वार की गेम चल रही है। ठीक है, तो हमने इसको दे दिया। ये डिजाइन एमडी से किया है हमने, कोई फैंसी किस्म का कोई टूल नहीं, हमने बस एक डिजाइन एमडी उठाया, वो आपको जेमिनी फ्लैश भी यूज करके दे रहा है। और स्पॉटिफाई वाला लगा था, तो लिटरली स्पॉटिफाई में करना तो थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको दिखाया था, वो एयरबीएनबी वाला था, तो मैंने उसको एयरबीएनबी का बोला था कि आप एयरबीएनबी का डिजाइन बना दो। तो डिजाइन के लिए अभी बेस्ट ऑप्शन ये है, इससे अच्छा ऑप्शन अभी कोई भी नहीं मिलेगा। ये टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है, बस डिजाइन एमजी के अप्रोच यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। लोग पूछ रहे हैं लिंक्स वगैरह, तो ये है लिंक। So much, Wajad bhai. It was a great session that you have given, and जितने लोग call पे हैं, they are asking me questions कि इसके बाद क्या है. So basically, I'll be answering all of your questions. So Talha, आपका question, although आपको landing page का link मैंने भेज दिया है, but I will answer all of the questions to you guys. So Wajad bhai, thank you so much for the session, and I know कि a lot of these people are now waiting for the main session to continue. तो मैं जरा take over करता हूँ and I will take things from here. So Wajad bhai, again, thank you so much for taking out time. And guys, एक round of emojis भेज दें ताकि we hype up Wajad bhai for giving this amazing session. And अब जो है मैं I'll come to the questions. So मैं आप लोगों के साथ जो phase 1 है उसकी update भी share करूँगा, और हैकाथॉन की तमाम चीज़ों के ऊपर भी चीज़ें मैं शेयर करूँगा इसके ऊपर, राइट। सो अगेन थैंक यू सो मच वजाद भाई। सो विद दैट गाइस, मैं आप लोगों के साथ इन्फो सेशन की स्लाइड्स शेयर कर देता हूँ, एंड मैं 1 by 1 तमाम क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ, एंड देन व्हाट आई विल डू इज मैं चैट पे जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो मैं 1 by 1 आप लोगों के आंसर करूँगा, ठीक है। सो अब मी बैक अगेन। सो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें स्वैग कब मिलेगा फेज 1 का। सो अब ये इमेज आपके सामने नजर आ रही है, मैं सेंटर में नजर आ रहा हूँ, एंड यू सी ऑल द पीपल दैट आर अराउंड मी। दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, कि a lot of people are asking me कि you know swag का क्या सीन है, कब मिलेगा, and all of these things. So in order to answer all of your questions,
दैट इज के जितने भी रिजल्ट्स हैं फेज 1 के वो हमें रिसीव हो गए हुए, ठीक है। We are currently in the process of processing all of the results, ठीक है। एंड जो मेन रिजल्ट्स हैं वो आपको मिड मई तक मिलेंगे, ठीक है। अब होगा ऐसे कि मिड मई लाइक 15, 16, 17, 18 तक आपको like you guys can expect an email from our side saying कि XYZ person like जो लोग सिल्वर टीयर जीते हैं उनको ईमेल आ जाएगी सिल्वर टीयर की, जो लोग गोल्ड टीयर जीते हैं उनको गोल्ड टीयर की ईमेल आ जाएगी, और ईमेल आ जाएगी, आप नोटिफाई हो जाएंगे उस चीज में। एंड लास्ट चीज ये है कि यूजुअली इट टेक्स 8 to 10 weeks for swags to be shipped to you guys, right? And that would be end of June, जैसे ही आपका वो खत्म होगा, क्या कहते हैं, हमारा हैकाथॉन फेज खत्म होगा, that is when shipping will continue, right? So this is just to give you guys an entire road map of what is to come, right? But rest assured कि जितने लोगों ने रजिस्टर किया हैं, जो भी विनर्स हैं, swags will be delivered to them, right? So देर हो सकती है, but प्रॉमिस ये है कि जितने लोगों को ईमेल आएगी उन लोगों को स्वैग जरूर शिप होंगे। सो उस चीज की फिक्र आप लोगों ने करनी, बिकॉज आई एम हियर टू लुक आफ्टर, पर्सनली लुक आफ्टर ऑल ऑफ दैट। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर आपको ईमेल आ भी जाती है और टाइमलाइन कम्युनिकेट भी हो जाती है और स्वैग नहीं रिसीव होता, तो अगेन आई एम हियर फॉर यू गाइस, डिस्कॉर्ड में आई एम देयर, आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ द क्वेश्चन, फील फ्री टू पिंग मी, आई एम ऑलवेज हियर। तो इस चीज पे स्वैग की फिक्र नहीं करती है, वो आपका भाई है आपको सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ विद दैट बीइंग सेड, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ 4-5 में क्वेश्चंस आप लोगों के इधर आंसर करूंगा, बट आई थिंक कि जो आप लोग क्वेश्चंस मेरे से चैट में भेज रहे हैं ना, मैं वो भी आंसर करूंगा। सो एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि कैन आई अप्लाई सोलो, right? So this is very important for you guys to understand that this is a team thing. So phase 1 was more solo, this is more team based thing, और इसके अंदर आपका जो है वो 2 to 5 people की टीम होगी, and all of them have to be 18 plus, right? So a lot of people were asking me कि क्या हम लोग एक बंदा 18 plus हो सकता है and remaining juniors हो सकते हैं। So all of them have to be 18 plus। अब मैं इसका ना थोड़ा सा आप लोगों को like एक reason बताता हूँ कि why we say कि 18 plus। So 18 plus ये है कि you know इस phase के अंदर there is traveling involved, there is more of these things, so a lot of the people have to make sure कि there is safety risks, there is security, सब चीजें मिला के, so from a global company's perspective where all of these things are there, you guys have to make sure कि 18 प्लस हो, राइट। एक और मेरा क्वेश्चन आता है कि क्या सब टीम मेंबर्स को रजिस्टर करने की जरूरत है? नहीं, इट्स एक्चुअली वन पर्सन हु इज द लीडर ऑफ द टीम हैज टू रजिस्टर, एंड बाकी सब जो है वो हम लोग उस तरह देख लेंगे। सो ये वाली चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि फेज पार्टिसिपेशन इन फेज 2 विदाउट फेज 1, क्या हम ये कर सकते हैं? यस, यू कैन टोटली डू दैट, एज आई मेंशन प्रीवियसली, एंड एज जितने भी सेशंस हुए थे फॉर फेज 1, उसमें मैंने ये बात आप सबके साथ डिस्कस की थी कि फेज 1 इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम फेज 2, ठीक है। सो ये वाली चीज है। अच्छा, अब फराज अली ने मेरे से पूछा है कि हैकाथॉन इज फिजिकल और नॉट, राइट? सो बेसिकली देयर आर 2 लेग्स टू इट। एक रीजनल राउंड्स है, रीजनल राउंड्स विल बी ऑनलाइन। अब रीजनल राउंड में ये होगा कि एनीबडी हु अप्लाइज, राइट, एंड it check marks the criteria of the team is 18 plus and they are all of their information checks out, they will be sent this problem statements एक document के अंदर 4 problem statements होंगी and you have to register one of them। अब मैं आप लोगों के सामने ना, जो लोग कह रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन में डोमेन्स के समझ नहीं आ रहा, मैं आप लोगों के साथ एक मॉक रजिस्ट्रेशन करूंगा सो दैट यू गाइस नो, ठीक है। सो ये है कि कैन वी वर्क ऑन द सेम प्रॉब्लम्स एज फेज 1। सो फॉर क्लैरिटी देयर विल बी 4 ट्रैक्स दैट विल बी सेंट टू यू, उसमें से आपने एक को वो करना है। वंस द ट्रैक इज चूजन यू कैन नॉट गो बैक ऑन इट। सो एक चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो सोल्यूशन है फ्रॉम फेज 1 इज फिटिंग ओवर हियर एंड इट फिट्स ऑल द क्राइटेरिया, तो यस यू कैन यूज एंटी ग्रेविटी टू अपस्किल इट एंड मेक इट बेटर, बट इट इज बेटर फॉर यू गाइस टू सी कि वो चैलेंज आपसे मांग क्या रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देन अप्लाई, लाइक गो फॉर इट, राइट। सो
इस तरह नहीं है कि फेज 1 की चीज हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते. सो दिस इज एन ओपन एंडेड थिंग. मेन चीज ये होगी कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जा रही है, आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है. दैट्स इट, राइट. लास्ट चीज ये है कि किस तरह आपकी प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, सो आई कम टू दैट. सो इस तरह होगा कि आपके रीजनल राउंड्स हैं एंड देन देयर इज अ नेशनल राउंड. रीजनल राउंड के अंदर बिकॉज देयर आर 3 रीजन्स, सो हर रीजन में से एक रीजनल चैंप और एक रनर अप सेलेक्ट होगा. ठीक है, टीम्स है. दीज आर द टीम्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. And there would be 6 special mentions. 6 special mentions को cash prizes तो मिलेंगे, but they will not proceed to the final, like the national round. ठीक है? So while there would be cash prizes for the team in the special mentions, they will not progress. Only the regional champs and runner-ups, they will also get the cash prizes, and they will be the ones that they will get a shot to compete for a bigger prize. ठीक है? और वो बिगर प्राइस क्या है? या वो नेशनल चैंप्स हो सकते हैं, या वो नेशनल वाइब रनर अप्स हो सकते हैं, या वो ट्रेंड सेटर्स हो सकते हैं, राइट. सो आउट ऑफ ऑल द 6 टीम्स दैट विल गो, 3 ऑफ देम विल विन. सो नाउ यू सी के हम लोग रिवॉर्ड्स, like we are making sure that like majority of the people get a piece of it. So I'm like, I think this is something really exciting. अब मुझे पता है कि काफी लोग कमेंट्स में मेरे से ये पूछना चाहेंगे कि उमर भाई इसकी वैल्यू क्या है, राइट. और वैल्यू के लिए मैं एक स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो ये है कि अभी नहीं. So I will be revealing the value, but this is something that you guys have to wait till after the registration is completed, right? So I can't right now, so you will have to wait. Okay? So again, I'm glad that I'm seeing like a lot of haha emojis. Thank you so much for appreciating this joke. Because जब मैं ये लिख रहा था, when I was making this up, so I was like, I hope like it is either a hit or a miss. So I think from the reactions that I'm getting, it's a hit. So thank you so much. ठीक है. एंड अब मैं ना आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट जो है, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिन्होंने फेज 1 के लिए रजिस्टर किया था, मैंने उनको ईमेल कर दी हुई है. लेकिन मैं ये FAQs आप लोगों के साथ एक 1 by 1 करके गो थ्रू भी करता हूँ, और इसके बाद मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन डेमो दूंगा. ठीक है, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे कि अच्छा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. एंड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन डेमो आई विल बी कमिंग टू द चैट साइड. अभी क्योंकि मैं चैट नहीं देख रहा, मैं अपनी स्लाइड्स को देख रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो मैं आंसर करूंगा. एंड एक और इनिशिएटिव मेरी साइड से वो ये है कि अब टिल द रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग मैं हर दिन एक FAQ लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड द अनाउंसमेंट साइड, ताकि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस हो रहे हो. ऐसा ना हो कि you guys feel कि सिर्फ I'm answering to only 1 or 2 people, but every day I'm going to send out a list of FAQs that I saw during the day. So this is again an initiative to help you guys out and make the most of this hackathon, right? So again, thank you so much for sticking by, right? मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये क्वेश्चंस को मैं 1 by 1 आप लोगों के साथ आंसर करता हूँ, and then I will move to the registration demo. ठीक है? So again, मुझे चैट में बताएं कि is it necessary to complete the phase 1? Chat में answer it in the chat. I mean सामने लिखा हुआ है, but still you guys can answer in the chat. Okay, is it necessary to complete phase 1 to participate in the hackathon? The answer is no. ठीक है? And why no is because these are completely separate phases. ठीक है? Do we have to build the same solution? नहीं, आपको we will be giving you 4 set of solutions. उनके अपने rubrics होंगे, अपने वो होंगे, and your team has to go through it. एक और चीज यूजली पीपल आस्क, और ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास है, व्हाट आई विल डू इज कीप ऑन एडिटिंग इट ताकि आप लोगों के पास तमाम FAQs का लिस्ट हो, एंड ऑल यू हैव टू डू इज फीड इट टू जेमिनी टू नो कि आपके क्या लाइक व्हाट आर द की रिक्वायरमेंट्स दैट यू गाइस आर हैविंग. सो उसमें ये है कि अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि क्या इस ड्यूरेशन में आपने कुछ बिल्ड करना है, कुछ भी आपने बिल्ड नहीं करना. इसमें सिर्फ द ओनली थिंग यू नीड टू बिल्ड इज अ टीम, and as long as you have a team, that's it, right? Technical briefs will be sent to you guys after the end of registration. Okay, so that's something that is you guys need to be mindful of. Where do we register? I think Fatma, if you can send the link in the chat. So this is the link
that we have to use to register, ठीक है? And if you guys have already done, तो वो कर दिया. अच्छा, अब is travel required for the hackathon? This is very crucial. अक्सर वक्त आपने देखा होगा कि even if you're from Multan, you have to see कि भाई आपका closest city कौन सी है, ठीक है? So for example, if I am from Multan, my closest city is Lahore, so I will select Lahore because travel will be provided from the regional hub, right? So for example, if I am from Multan and I win, I would have to travel to Lahore, and then Lahore se travel jo hai to Islamabad will be given, right? So this is something that we need to be mindful of. So the regions that we have is Sindh ke liye, we have Karachi, then Federal Territory is for Islamabad. And then if there's any good use case that we get from Gilgit-Baltistan or like Skardu, this is something that we will evaluate then, right? So this is just to clarify to you guys. Age requirement, super clear to you guys कि 18 से older होना है, and that's very important. And ये चीज आप लोगों ने देखनी है. And if you guys register for phase 1, does it mean that you automatically register for the hackathon? It does not mean that. So for the hackathon, there's a separate registration and you have to separately register. और ऐसे होगा कि एक टीम लीडर है, उसने रजिस्टर कर दिया सारी टीम को, तो सारी टीम की रजिस्ट्रेशन हो गई, राइट? सो registration in the hackathon is team based, not individual based, ठीक है? Technical support is जो है, अच्छा मैं एक थोड़ी सी sympathy मैं गजनफर के साथ करना चाहता हूँ कि I know कि a lot of 18 people are saying कि भाई this is not a fair thing, लेकिन guys rest assured कि in the year in this अभी year तो mid भी नहीं हुआ, but soon we will be going for a lot of online vibe coding challenges and stuff. तो जब ये होगा तो inshallah you guys will have more opportunities to secure क्या कहते हैं prizes and stuff, right? So ये हमने divide ही ऐसे किया था कि online is more open, hackathon is more closed for core developers and stuff. But I understand, मैं आप लोगों के साथ sympathize करता हूँ, तमाम 18 who are less than 18, I sympathize with you guys, and I also say कि I'll keep you guys engaged, and inshallah in the future कोई ना कोई आप लोगों के लिए भी challenge हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह हम लोग कर सकते हैं. अच्छा, अब now I know कि it's 11 AM and a lot of people have dropped off, but मैं आप लोगों के सामने एक registration demo करूँगा, ठीक है? And then based on that registration demo, I will come to the chat and answer all of the following, the final questions, and then that's about it, ठीक है? So मैंने खोला InnoCollab और मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, and then I will guide you guys, ठीक है? मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इसमें, तो अच्छा, जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं ना कि डेट्स क्या हैं, सो वो डेट्स ये है कि देखें 4 मई को रजिस्ट्रेशन खुली, 11 मई को बंद हुई, ठीक है? 13 को शॉर्टलिस्टिंग होगी. शॉर्टलिस्टिंग का मतलब ये है कि वी विल सी कि अच्छा किसी की एंट्री के अंदर ऐसे नहीं है कोई 18 लेस देन 18 आ गया हो या फिर कोई इस तरह की चीज आ गई हो. एंड देन व्हाट विल हैपन, ऑल टीम्स विल गेट द क्या कहते हैं चैलेंजेस. अब वो चैलेंजेस मिलने के बाद हम लोग एक इन्फो सेशन, इसी तरह के एक और इन्फो सेशन मैं करूंगा जिसमें मैं आऊंगा, आई विल ब्रिंग द टीम विद मी एंड आई विल पर्सनली सी टू इट कि आप लोगों को एक एक स्टेप बताया जाए कि यार किस तरह इसको हर चैलेंज की क्या निटी-ग्रिटीज हैं, ठीक है? सो रेस्ट अश्योर्ड आपका भाई इधर ही है, ready to help you guys throughout this process, and super excited कि ये कैसे होगा, ठीक है? फिर उसके बाद जब आपकी फाइनल क्वालिफाइंग राउंड्स डेडलाइन यानी इस टाइम पे सबमिशंस होंगी, और फ्रॉम 20th to 29th इवैल्यूएशन हो रही होगी, और जो टीम्स फाइनल में जा रही हैं उनकी अनाउंसमेंट 29th को होगी. फाइनल राउंड की यानी ये जो 29th है और 5th का जो ड्यूरेशन है, इसमें फाइनल प्रोजेक्ट्स बन रहे होंगे, एंड देन वो होगा. अच्छा, एक की बात आप लोग माइंड में रखें कि अक्सर पीपल वर आस्किंग कि एंटी ग्रेविटी अगर ऑन द डे ऑफ द हैकाथॉन बंद हो जाए तो क्या होगा. Key point to note is that there is a reason why there is a huge bracket of time that's given to you, ताकि उस duration के अंदर we can help troubleshoot issues as they come and guide you guys throughout the process. तो वो बना ही इसलिए है ताकि we help you guys out. और जो final pitching round है वो इस्लामाबाद में होगा, and that's going to be a grand ceremony जिसमें
जो national winners होंगे, they will get to meet me. If you guys are lucky, Saad Hamid is going to be here, so you guys are going to meet Saad Hamid as well in the final ceremony. And then जितने लोग आप लोगों ने online देखे थे, not like apart from the people who were in Google, जो पाकिस्तान में, we will be inviting those. So final ceremony is going to be grand. अब मैं इधर आता हूँ कि यहाँ पे आपके सामने एक जजिंग क्राइटेरिया कि किस तरह आपको जज करे होंगे. सो वो देखेंगे कि एंटी ग्रेविटी की इंटीग्रेशन कितनी हुई हुई है, एजेंटिक वर्कफ्लो कैसा है, आपकी प्रॉब्लम एंड लाइक अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक्शन लाइक व्हाट इज द सिमुलेशन किस तरह रन हो रही है, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन एंड इनोवेशन क्या है, राइट. सो ये सारी चीजें आर लिस्टेड ऑन द लैंडिंग पेज. इफ यू पहले नहीं थी, अभी हम लोगों ने लाइक step by step we are releasing all of these information to you guys, so you guys can see all of the information is available on the landing page. Judges, wo ye hai, there will be more judges mentioned, and I will also be a judge in the process. So kya kehte hain, inshallah, kya kehte hain, feel like looking forward to seeing like great solutions to you guys. ठीक है, so आप लोग इधर इस पे क्लिक करेंगे, initialize वो. So इसमें मैंने सिर्फ अपना like for example मैंने अपना email डाल दिया, umar.nasir94@gmail.com. I mean I'm already registered, but still इसका पासवर्ड मैं बता देता हूँ मैं पासवर्ड क्या रख रहा हूँ, and because I'm not actually, I'm already registered, so मैं इसका पासवर्ड रख रहा हूँ AI सीखो जिंदाबाद. ठीक है, 1997 और AI सीखो जिंदाबाद. ठीक है जी, ये हो गया. अच्छा, इसमें इन्होंने कहा है कि 1 कैपिटल लेटर. ठीक है जी, ये हो गया. मैंने अपना नाम इसमें ऐड कर दिया, मोहम्मद उमर नजीर. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस माय एज? सो माय एज इज, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन गेस माय एज. नंबर जो है मैं लिखूंगा, मैं नंबर तो नहीं दूंगा किसी को अपना, बट 0333000000. ये नंबर नहीं है, इस पे आप कॉल नहीं कर सकते मुझे, राइट. सो ये हो गया. फिर उसके बाद मैं लिख दिया गूगल, आई एम प्रोफेशनल. अब फॉर एग्जांपल इफ आई वाज लिविंग इन चकवाल, तो माय नियरेस्ट city hub is Islamabad. If I was living in Multan, तो my nearest one is Lahore. If I was living in Hyderabad, तो my nearest one is Karachi, right. So यहाँ पे लिख देता हूँ, I will configure team. मैं यहाँ पे टीम मेंबर साद हामिद, साद हामिद के साथ मैं टीम कर लेता हूँ, राइट. और उनकी एज इज लाइक अराउंड 35. मेल मेंबर, रीजनल लीड, ठीक है. एंड प्रोजेक्ट पिच. अच्छा, प्रोजेक्ट पिच में आप जब जाते हैं ना, इधर सिर्फ आपने अपना रेलेवेंट, इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ हैकाथॉन, इफ यू हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन अ हैकाथॉन, बट जस्ट टॉक अबाउट योर रेलेवेंट एक्सपीरियंस. दिस हैज नो बेयरिंग ऑन वेदर और नॉट यू विल बी क्वालिफाइड और नॉट, राइट. सो दैट्स वेरी क्लियर फॉर यू गाइस टू नो. तो ये चीज इसमें है. इसमें एनी area that you're interested in, right. So this is again having no bearing on whatever you guys going to be talking about. So for example, if I'm इस पे हूँ, public health पे हूँ, सब पे मैं interested हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ I am a white coder, ठीक है. मैंने तो लिख दिया, मेरे पास GitHub नहीं है, मैं इधर करता हूँ deploy my team, ठीक है. अब ये user already इसमें है, तो ये मैंने like मुझे ये आएगा, but like this is how you register and this is in the entire process. जब once you get all of these things, तो आप कर सकते हैं. And वो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि can above 35 apply? Yes, you can above 35. If you're above 35, you can apply, but 18 से नीचे नहीं होना चाहिए. So that's clear. ठीक है. अब I'm here. I'm looking at the chat. If you guys have any questions, feel free to ask me, and मैं आप लोगों की one by one questions को answer करता रहूँगा. And I think I will stay for another 20 minutes. I think I should stay for 20 minutes to guide you guys. And if not, then Discord के ऊपर हम लोग we can take this forward. ठीक है. अच्छा, जितने लोगों ने कहा है ना 29, like they were guessing my age to be 29. I feel young. No, so I'm not 29. I was not born in 1997. I'm actually a bit older than this. ठीक है. I mean,
Thank you for letting me know. I don't look that old, but okay. Is it necessary to build an app or can we create a web app? No. So for the hackathon, it's absolutely necessary to build a mobile application. That's very important. Okay. So mobile application is very important. And so I'm so sorry, my chat is actually lagging, so I can't read a lot of your comments. But I don't know why it's lagging right now. Yes. Okay. Let me, collab में team create करनी है उधर. Yes, आपने team create करनी है, right? फिर उसके बाद when you try to when you try to sign up, it says user already logged in. I think I have already registered. That's why it's saying that. So मैं आपको सिर्फ एक गाइड दे रहा था कि ये कैसे करना है इस चीज को. ठीक. अच्छा. Again, guys, sorry, my chat is a bit messy today. I don't know क्यों ये मसला कर रही है. अगर कोई नॉन डेवलपर करना चाहे participate, by all means they can participate. Non-developers are welcome, and this is actually they need to do it. So I don't need to register in a collab if a lot of questions that I'm getting. Achha, guys, can you give me like 1 second? Let me drop off and join again because I think my chat is lagging. Okay. ठीक है जी. Sorry about that. अब मैं questions answer करता हूँ. ठीक है सर. एक सेकेंड. बहुत सारे messages आ गए हैं. So अच्छा, is the mobile app needs to be in Flutter? So that's something that we will be revealing later, and that's something जो हम बाद में बताएंगे. So currently it's all about using anti-gravity to to develop applications like as a mobile application. जिनका programming background नहीं है, it's simple. All you have to do is download anti-gravity, register your team, and उसके बाद just follow the processes and build something, right? Ibrahim, can you not spam the chat because मुझे ना it's getting difficult for me to. हाँ, so अगर आपने AIC को वेबसाइट पे रजिस्टर किया हुआ ना, तो that does not count. You have to register at InnoCollab for the hackathon. So this is very important. And if your team member is from a different city, it's okay because online है. But at the end of the day, आपने वहाँ पे करना है. And again, guys, मैं answer कर रहा हूँ आपको कोई questions. If you try to spam it, तो होगा ये कि questions answer नहीं होंगे, and like a lot of experience is going to get messed up, right? मैं answer कर रहा हूँ, आप ही का कर रहा हूँ bro. So please have some patience, क्योंकि होगा ये कि फिर questions answer नहीं होंगे तो you know this call is to have a collaborative experience for you guys. ठीक है. So team अगर आपकी different city में कोई मसला नहीं है, आप करें, लेकिन जो टीम लीडर है उसने अपनी टीम को करना है. एंड दूसरी चीज ये है कि यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि आप लोग अपने जो रीजन है वो उसी रीजन से आपको ट्रैवल दिया जाएगा, तो ये आप माइंड में रखिएगा. ठीक है. अच्छा, विल द पार्टिसिपेंट्स गेट सर्टिफिकेट्स? सो सर्टिफिकेट्स इज समथिंग दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ. ठीक है. दिस इज समथिंग दैट वी कैन सी, बट this is more about you getting participation on to the hackathon. So if you qualify and you win, so that's more about getting prize money and swag as a reward rather than certificates. ठीक है. What's the first? अच्छा guys, please spam ना करें यार, मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है comments को. Share the registration. Fatma, can you share the registration link over here? Yes, I can share it. अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे है कि एक और क्वेश्चन है कि फाइनल राउंड इस्लामाबाद में हो गया. फाइनल राउंड भी इस्लामाबाद में होगा, फाइनल सेरेमनी भी इस्लामाबाद में होगी. सो दिस इज
what are the 4 problem statements on which we have to work on? Wo problem statements, once the registration phase has ended, that will be sent to all of the people. You have to pick one problem statement, and once you have picked it, you can't change it. So that's something you guys have to decide before you guys choose that. ठीक है, फाइनल राउंड में डिफरेंट एप्स होंगी. यस, फाइनल राउंड में डिफरेंट एप्स होंगी. सो ये चीजें हैं. फिर उसके बाद so agar if you have given Islamabad as your city, so it's okay. I mean, either you can re-register or keep it this way, and then in the regional round you can like maybe discuss this later on, because online ही है. But ये आपने make sure करना है कि वो travel जो है वो फिर उस region से दिया जाएगा आपको. ठीक है. फिर उसके बाद for every region only winner and runner up will go to the finals. Yes, so for every region winners and runner ups, so 6 teams in total will compete in the finals. And then और वो ये होगा कि कराची से 2 टीम, इस्लामाबाद से 2 टीम and लाहौर से 2 टीम. So there's like 6 teams that will be competing. अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के फाइनल्स हैं और वो क्लैश कर रही है, सो unfortunately these dates are like set because a lot of schedule has to be mapped out, so वो change नहीं हो सकती. ठीक है. अच्छा हाँ, question is गजनफर का कि can we get like swag. तो मैंने पहली बात ही वो swag की थी कि mid May, and after getting an email you can wait till like 8 to 10 weeks. बेसिकली आपका हैकाथॉन रैप अप होगा तो आप लोगों के साथ स्वैग्स की डिटेल शेयर हो जाएंगी कि कब तक मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं. एंड अगर आपको ईमेल आ जाती है ना, तो फिर मेरा जिम्मा है आपको स्वैग्स पहुंचाना, राइट. सो डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. ठीक है. रीजनल की टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग इज समथिंग वो आपके साथ कोलैबोरेट कर लेंगे. सो दिस इज नॉट समथिंग ऑफ अ क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस राइट नाउ. My address, like the things that we are trying to address are more around how you guys can register. What's the number you see Pakistani devs make during the pitch? अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बार बार आता है, फिर मेरी नजर से निकल जाता है. So अच्छा, so इसके अंदर ना सुदेश, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. बट इसके अंदर ये होता है कि आपकी वैल्यूएशन आपकी पिच पे तो हो रही होगी, बट आपकी सोल्यूशन, आपकी presentation, आपकी जो interaction of your like the project that you build, all of these things will be evaluating. So I would say that the number one thing that you guys can do is don't try too hard to sell your product. I mean, if like in the pitching round, if you think that this is a good solution, make sure that all of these things are giving जो आपकी rubric है वो सब चीजें check mark हो रही है. As long as that is done, वो चीज, the number one mistake I see people is कि वो अपने हिसाब से चीज अच्छी बनाते हैं जबकि वो rubric के हिसाब से अच्छी नहीं होती, right? So rubric के हिसाब से किसी एक point के ऊपर उसको वो fail हो जाते हैं. So it's important to keep these things in mind. ठीक है. अच्छा, आप ये जो है एंटी ग्रेविटी की जो लिमिटेड वो है, सो फ्री टियर ही यूज हो रहा होगा. एंड इफ इन केस कोई लिमिट रीच हो जाती है तो आई वुड रिकमेंड कि जुगाड़ तरीका ये है कि यू कैन क्रिएट लाइक मल्टीपल अकाउंट्स, एंड बिकॉज इट्स अ टीम चैलेंज, सो अ टीम कैन वर्क ऑन अ सोल्यूशन लाइक यू गाइस कैन वर्क ऑन अ टीम एज अ टीम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो वो चीज जो है वहां से उसका, सो इट्स अ टीम चैलेंज, वीक का टाइम दिया जाएगा, सो यू गाइस कैन वर्क ऑन द चैलेंज इन बिट्स एंड पीसेस टू कंप्लीट योर सॉल्यूशन. ठीक है. फ्लटर के कौन से टूल स्पेसिफाई करते हैं? सो आई एम नॉट टू श्योर के यू नो व्हिच प्लेटफॉर्म यू गाइस विल बी यूजिंग, सो दैट वुड बी टोटली ओपन. अच्छा सर, एज अ लीडर रजिस्ट्रेशन कर ली है बट डैशबोर्ड पे कोई टीम मेंबर शो नहीं हो रहा. अच्छा, ये जो है मुझे काफी क्वेश्चंस ये आ रहे हैं. I have sent this to the Innovista team as well. Let me get back to you guys on this. ठीक है. So अगर जैसे ही मुझे इस पे information मिलेगी तो I will personally ping you guys in the Discord channel और मैं वहाँ पे announcement में डाल दूँगा. अच्छा सर जी, कोई फीस है? बिल्कुल फीस नहीं है. This is a completely free challenge. Can we edit our submission forms? Acha, let me get back to you guys on this. Okay, it's a good question that you guys ask. Can you edit it?
ठीक है, ये हो जाएगा. सर कैन वी ऐड और चेंज द टीम मेंबर अगेन? मैं जो है लेट मी गेट बैक टू यू गाइस ऑन दिस टुमारो. लेट मी राइट दिस डाउन विद माई सेल्फ. मैं लिख लेता हूँ. लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड राइट दिस डाउन. एंड मैं आप लोगों को ये चीजें कल इसके ऊपर अपडेट कर सकता हूँ. ठीक है, सो एक क्वेश्चन मेरे पास है कि कैन वी एडिट द टीम एंड if there is an issue with registration, can we make changes? So वो भी मैंने लिख लिया है. इंशाल्लाह आप लोगों को कल तक डिस्कॉर्ड पे मैं बता दूंगा. अच्छा, ट्रैक्स में क्या होगा? सम हिंट्स. अच्छा, ट्रैक्स में क्या होगा? देयर विल बी थिंग्स अबाउट एजेंट्स, देयर विल बी थिंग्स अबाउट वर्कफ्लोज, देयर विल बी थिंग्स अबाउट लास्ट चीज क्या है? गेम्स, राइट? सो दिस इज समथिंग सुपर एक्साइटिंग. और गेम्स का जो है वो आप लोगों के साथ जब शेयर होगा कि इट वुड बी सिंपल प्रॉम्प्ट, हर चीज डिफाइन होगी, वो बस आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है. नहीं, सो आप अभी तक तो आपको पता ही नहीं है ना कि आपका चैलेंज ये है. तो बेसिकली मेरे से मास मास मेसम 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 एम आई सेइंग द नेम? मेसम जावेद ने ये बोला है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस के अंदर हम अपना आइडिया पिच कर सकते हैं. सो अभी तक आपको ये पता ही नहीं है कि किसको आप रिस्पॉन्ड करेंगे. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें सिर्फ आप अपनी ये लिखेंगे इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड, आर यू अ वाइब कोडर, एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, फिर उसके बाद हैज डेटा लीक आल्सो समथिंग. अच्छा, ये मुझे जो है ना सारा, कैन यू गिव मी अ वो कि क्या मतलब कि डेटा, देयर इज अ डेटा लीक इन दैट. Also, we have to build something for the regional office based on registration. So, आप लोगों को जब वो मिलेगा ना that challenges, so उनको आपने respond करना है, वो in detail में आपको पता चल जाएंगे. So you guys would have to respond to that. Can different team members of the team be in different regions? Will they be provided separate transport? So आइडियली होगा ये कि एक टीम को नियरेस्ट रीजन के हिसाब से मिलेगा, जो वो रीजन के करीब है. बट दिस इज समथिंग दैट वी कैन लुक इनटू एज वेल. डू वी हैव टू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन? वेरी गुड क्वेश्चन तलहा. नो, वी डोंट हैव टू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन. यू कैन इफ यू वांट टू, आई मीन टू शो के व्हाट योर टीम बिल्ड एंड द सॉल्यूशन, बट इसमें लिंक्डइन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट. ठीक है. सर स्टूडेंट्स भी होंगे और प्रो devs भी like professionals, do you think that? Yes, so basically अभी अगर मैं देखूं तो there are people that are 35 years old and they're competing, and there are young white coders that are competing in like the phase 1, and age is not like age is no longer a differentiator, because I think students are actually more creative and more jugaru when it comes to like developing cool solutions and stuff, right? So you guys actually have an edge because you guys are university students. आप लोगों के पास range of area है where you guys can ask for help. So this is a fair like in the age of AI and all of these things, age is no longer a differentiator कि आप कितने talented होंगे, right? Can we add or change the team members? अच्छा, मैं again I will get back to you. I have successfully completed phase 1, but wanted to clarify if I do not participate in phase 2, will. Yes. So if you do not, Danish Raza, if you do not participate in phase 2, that's completely okay because we're separate hai, right? So you need to keep that in mind. फिर उसके बाद please let me know at this point, does any system. Acha, so systems will not be provided. It would be only on your own laptops. जिसके ऊपर चीजें देखी जाएंगी. अच्छा, also Okay, Sarah, thank you so much for bringing this into my attention. कि आप logs वगैरह देख सकते हैं. Let me write this down and mention it to the team. Thank you so much for mentioning it.
ठीक है, data security. ठीक है, thank you so much for mentioning this. What kind of the other categories? अच्छा, other categories, because ये वाला सिर्फ एक checklist है just to gauge your interest, so that's something we cannot like I would not comment more on के biotech है या what does it mean. It's up to your understanding. Can we? अच्छा, so we cannot increase the dates. Dates are locked. ठीक है, जैसे आपने phase 1 में भी देखा था. So Talha, you asked me a question. Okay, can we increase the dates? So dates as it is are locked. जो end है और start है, इसकी चीज इधर उधर नहीं हो सकती. जो बीच की चीजें हैं, अगर based on some conditions या कुछ इस तरह की चीज हो तो उस हिसाब से शायद वो move कर सके. लेकिन currently as of now these dates are locked. फिर उसके बाद मैंने इसका आंसर कर दिया हुआ है. ठीक है, ये भी मैंने आंसर कर दिया हुआ है. सो इमरान हसन ने कहा कि इसका डायग्राम बना के देनी होगी. सो दिस इज समथिंग दैट आई लाइक कीप इट ओपन फॉर द डिस्कशन इन द जब हम लोग सबमिशन करेंगे. सो अभी ये वाला क्वेश्चन मैं आंसर नहीं करूंगा, बट दिस समथिंग दैट वी कैन पार्क फॉर लेटर. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये लिख रहे होंगे और क्या है. So I will, I think, answer your questions for like 6 more minutes, and then फिर उसके बाद हम लोग वो कर सकते हैं. ओके, चार्जिंग प्रोवाइड, हाँ चार्जिंग वगैरह प्रोवाइड होगी. जो आपका फिजिकल है वो उसमें आपका जो ऑनलाइन है उसमें तो आप लोग घर से ही कर रहे होंगे, बट लाइक जो फिजिकल होंगे उसमें बिल्कुल आपको की जाएगी. फिर उसके बाद I think these are all the questions that बस कहीं नहीं. मुझे भी नींद आ रही है guys, so मैं I'm up since 6 AM, have like making sure कि आप लोगों के hackathon की चीजें are all sorted, and like so I'm working literally with you guys to make sure कि all of your questions are answered. You guys have all the necessary details. So I think I will pause right now, and then later on we can start the discussion in Discord, or then we can take things from there. ठीक है. So क्या कहते हैं, जो कह रहे डैशबोर्ड के ऊपर टीम नजर नहीं आ रही, उसका वो ये है कि अगर आपने टीम रजिस्टर करती हुई है, सो आई थिंक उसके ऊपर आपको डैशबोर्ड पे नजर आने की जरूरत नहीं है. द मेन थिंग दैट मैटर्स इज द रजिस्ट्रेशन. ठीक है. और अब मैं करूंगा इस मीटिंग को क्लोज, एंड देन वी कैन टेक द डिस्कशन लेटर ऑन इन द डिस्कॉर्ड चैनल. और जो द पीपल हु आर आस्किंग के if I'm from Korea, she got selected. Which do we have to come to Islamabad? Exact date. So exact date will be around like 7th. So usually इस तरह होगा कि 7th को बुलाया, उसी दिन आपका फाइनल कराया, and अगले दिन आपकी वो हो गई जो फाइनल सेरेमनी है. बट ये लॉजिस्टिक्स आपको बाद में कम्युनिकेट किए जाएंगे. ठीक है. So okay guys, thank you so much for tuning in. Next time के सेशन के लिए